सिंगल लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो डेटिंग ऐप इंस्टॉल करके एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। तो अब ये लक्ष्य की टिप है सबके लिए। गवर्नमेंट का मैं पर्सपेक्टिव जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि वो कैसे इस स्पेस को, क्योंकि वो मैंने देखा है शायद ब्लॉकचेन में ज्यादा ध्यान देती है बट क्रिप्टोज में नहीं। तो आप क्या बिलीव करते हैं इस चीज पे? I think government is very clear what they want to do. You can be that government is not clear, but in mind they are clear. Okay. Like one of the recent question was asked by Nirmala Sitharaman, one of the finance minister, and she had answered that there is no problem with the crypto as an asset. Okay. Okay, trading is not a problem with us. Currency is a problem because you have to understand if somebody is taking a vegetable, Right. okay, and just imagine that vendor is sending you the vegetable, and the vegetable costs us 100 rupees. You are paying crypto, and suddenly that vegetable costs us 60 rupees. Who is going to pay that 40 rupees loss just happened because of the crypto price valuation? Because of the volatility. Yeah, stable coins can be one of the way, but again, stable coins are not trusty. You cannot trust them. Centralized है अभी भी. No, stable coin is a problem that is issued by someone you don't know. Yeah. And USDT सबसे बड़ा example. Yeah. And the most of the country which are regulated, they have very good banking infrastructure like India. They will never allow these things because they have a structure, they have a banks, they have a biggest institution, they have one of the biggest technology builder, MPCI, who has built UPI, biggest technology in payment. And you say that okay, we are building something amazing than UPI, nobody can build it. I don't think it's very difficult to build something like UPI nowadays. So that's why they are thinking that why not build our own blockchain currency, which is CBDC, Indian Rupee. And I think it's very okay because at the end you have to look at government angle also. But if right now they have launched CBDC for non-banking application to use it, right, and have a wallets of CBDC, use cases of CBDC in future, I think there's a very bright future of CBDC plus crypto plus tokens coming together. Where is there? I don't know, but at least I think government is clear what they want to do. This happened, I think one of the survey was happened with WazirX, which launched their, I think, centralized exchange. And you know where the most of the Bitcoin purchase happened? Rajasthan women's. Okay, and there are village women who brought Bitcoin, and they are like, we don't know ABCD of Bitcoin. They just brought because they had a fear, they had a money, and that money can be taken by their husbands because they had a fear because this is our personal money. They have saved it in the pillow, they have kept it under the carpet or somewhere, and they have put in the same money into the WazirX. Okay, and they lost a lot of money. But at the end, the study shows that in India, women can be the biggest asset which can be come into crypto because they don't know stock market now. Right. Okay, they don't know in stock market. If you start teaching them cryptos right now, they can be one of the crypto market developer because they can shift to crypto because they always say stock market is for men, then they can say crypto is for us. Okay, there can be 1-2 market, like one female, one man market. That's can be one of the scenario in India can build. If you sell a crypto, then you have to pay a tax. If you don't sell a crypto, there's no tax. Exactly. So now they're only purchasing. And they're like, okay, after 25 or 50 years, I will sell. Or I will not even sell. I will give it to my children. And then my children will give it to my children, my children will give it to my children. Let's see how much government can wait. I will go to 100-year plan. And let government wait 100 years for taxing my crypto. But I guess there's a tax loophole. Even अगर ऑडियंस को ज्यादा पता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकता है डेफिनेटली. बट जब आप प्रॉपर्टी, मतलब जब आपके एसेट्स होते हैं, आपकी आगे वाली जनरेशन उसे इनहेरिट करती है, तो जितने भी जब तक वो बीच का कैपिटल गेन होता है दैट्स रीसेट्स टू जीरो. बिकॉज जब उन्होंने इनहेरिट करी है तो उसकी मार्केट वैल्यू कुछ और होती है. तो मतलब अगर यही चीज हम कंटिन्यू करते जाते हैं तो इस तरीके से वो एक इनफिनाइट टैक्स ग्लिच हो गया. Yeah, definitely. And this can be one of the assets which can you transfer to your children very easily. You don't need to go to ask government permission. You don't need to go to government office and say, I want to transfer my real estate papers. I have to get a signs and all that. Just what you have to do, you have to have a crypto wallet. Then you have your entire wallet address. Transfer that all your money and that done. ठीक है. तो लाइक अगर अभी हम बात करें गेमर वेब 2 से वेब 3 पे शिफ्ट करा, राइट, एंड अभी भी दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग कि कैसे वो यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं. लाइक जो क्रिप्टोज की नॉलेज जिनको ज़्यादा है वो बहुत ईजिली यहाँ से इनकम जनरेट कर पा रहे हैं. एंड लेकिन जो अभी न्यू बिगनर्स आ रहे हैं, लाइक उनको आप क्या रोड मैप दे सकते हो कि अगर आपको स्टार्ट करना है एंड गेम 5 में एंटर करना है, ऑफकोर्स गेमिंग के थ्रू पैसा कमाना है, तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? श्योर. तो
I'll be very honest with you. जो आजकल की Web3 gaming industry है, a lot of it is driven by the wrong motivation. Like you said, the people who are designing some of these games are not necessarily game designers. They're more quote unquote crypto designers, if I might call them that. And a lot of these games have unfortunately or very quickly failed after the last bust of the cycle. The reason why is because they're not focused on what made gaming so special, which is the actual game mechanics and making a game truly enjoyable, competitive, etc. It was basically another shell on, not to get too much into it, but the pump and dump schemes, at least some portion of it. I'm not saying all games are like that. Now, coming to your question, essentially, I think the first thing to understand for an average person who's getting onto these games is to understand and do a little bit of research. There's so many different educational platforms like yours where people can go ahead and research about the games to understand who are the people behind the game and whether it is inevitably a pump and dump game where essentially they might get lucky or, they basically might be the ones who are left with the quote-unquote cost of somebody else profiting from it. Right. So I think starting off with the research is most important before you even get into the actual game itself, कि उसके पीछे कौन है, उनके जो tokenomics क्या है, जो basic tokenomics क्या है. अब again we can do an entire lesson on that, but things like trading volume, उसमें कितने players अभी शुरू से कर रहे हैं. सिर्फ एक वो profit motive नहीं होना चाहिए gamer के लिए. बिल्कुल, because gaming becomes powerful when you enjoy it, right? And that's the most important thing. तो वो profit is the bonus essentially. अगर आपको लगता है कि आप गेम खेल के अपनी पूरी लाइवलीहुड बनाओगे और उस मोटिव से शुरू करोगे तो आप प्रोफेशनल ई स्पोर्ट गेमर बन के भी वो नहीं कर सकते हो, राइट? The reason why a fantastic or a world-renowned FIFA player is the best FIFA player and earning hundreds of thousands of dollars and millions of dollars in competitions is not because he focused to get the $1 million. He focused on being the best player at FIFA, right? As an example. Exactly. ऐसे तो breed to earn कर लेते हैं, ठीक है? सांस लेने के पैसे मिलेंगे, पूरी दुनिया अच्छी हो जाएगी, right? सोने के भी बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे तो सोने के पैसे मिल रहे हैं. उसका है actually. I'm pretty sure there is actually something that sleep to earn. Yeah. That might be taken wrong by the audience. Sleep alone to earn. But you're joking about it. That's actually a positive use case, right? Cutting to the actual use case, right? So actually audience के लिए भी नई चीज है. अगर आप अभी अपने बेड में आराम से ये पॉडकास्ट देख रहे हो और नींद आ रही है तो आप सोने से भी पैसे कमा सकते हो. लेकिन पहले कॉइन रजिस्टर कर लेना और देख लेना कि उनके फाउंडर चोर नहीं है, नहीं तो आपकी नींद चुरा के ले जाएंगे. लिटरली. अगर मैं इस गेमिंग सेक्टर में स्टार्ट करूं, ठीक है, आपने मुझे बताया डेफिनेटली गेमर के लिए क्या स्टार्टिंग पॉइंट्स होने चाहिए, टोकेनॉमिक्स क्या होने चाहिए एंड फाउंडिंग टीम क्या होनी चाहिए. लाइक इसके सिवा भी एक गेमर को जिसका मोटिव है गेमिंग करके पैसा कमाना, ऑफ कोर्स मनी मेकिंग नहीं, बट एक गेम खेलकर उसे मज़ा आ रहा है एंड उसको वो मोनेटाइज करना चाह रहे हैं इन Web3. तो लाइक अब उसके लिए क्या आप एक्स्ट्रा स्टेप्स दे सकते हो, कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स जिससे वो प्रोटेक्टेड रहे एंड एक्चुअल में मनी कमा भी सके? Sure. So I think again, most important thing is research, right? Because gaming में होता क्या है, we just get tempted. Yeah. We get tempted by the graphic fidelity or by the topic essentially. So it's very important to take that first step, especially in the Web3 world because we're talking about it, and look at who are the backers of the project essentially. Are they even public or not? I think that's the biggest red flag we've seen, right? अब तो थोड़ा at least improve हुआ है. नहीं तो कोई XYZ alias वाले projects बना रहे थे, CFO कहीं किसी hidden island पे बैठा हुआ है. तो that's the thing you want to start with is before you're investing quote unquote your actual time into doing something with the idea that you're actually going to be having fun as well as earning money. I think it's very important to वो बोलते हैं ना, hold your horses and jump in, do your research about the project itself. I think that is step number one. Step number two is think about the game itself. And when you see it in the trailer or you're playing a beta or whatever it is, you should ask yourself, is this something I'm going to enjoy if there was nothing monetary to it? Right? And this is very important question. Yeah, this is as a consumer as well as somebody who's developing this, right? It's very important. Because if the game is not fun, you can sugarcoat it however you want, it doesn't matter. My background has been in the educational/social impact gaming space, right? But the moment I call something an educational game, even if it's a fantastic game, people are not going to want it. Nobody wants, as they call it, candy-coated broccoli, right? So the game in itself has to be a fun, entertaining game. कि
I'm going to play it irrespective of क्या होता है, वो तो bonus है, right? Now in terms of if somebody is trying to look at it as a serious, full-time role essentially, or at least a way of sustaining themselves, then they should also look at some of the market dynamics again. So not just around the project, be like, for similar projects essentially, is there a market? So again, we talked about FIFA, right? Right. So if there's another game which was maybe for cricket or for any other sport, the chances are, yeah, it will be an easier let into being something monetizable from the esports angle. Something like an arcade game, Right. Tournaments like Tekken as an example, that will be great, or some Web3 version of that will be great. However, again, I'm not saying this is not possible, but would you have competitive Candy Crush? Maybe, maybe not, right? But that's the kind of thinking you need to think about, is that if you're looking at it purely as a career perspective from a gaming standpoint, not from a game development standpoint, not from a game founding standpoint, then those are some of the dynamics you would look into. And then, of course, the fundamentals is the same. Do a cost benefit analysis, right? Think about the math behind it, कि बस पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए बोल रहे हैं कि ये प्रोफेशन है, या actually you'll be able to make a livelihood. Right. And also, obviously that doesn't mean you leave your education halfway to do that. जैसे अभी आपने मेंशन करा कि RWAs, जो अभी आपने एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बताया कि अगर 10 लोग मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीद भी लेते हैं और अब उनमें ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि मुझे पहले महीने चाहिए या किसी और को वो पहले महीने चाहिए या किसको दिसंबर में चाहिए जब वो हॉलीडे सीजन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अभी भी डिसएडवांटेज रहेगा और इसकी अभी भी मैं कहूँगा प्रॉब्लम सॉल्व मार्केट में आनी ज़रूरी है. लाइक अगर फॉर एग्जांपल वो हॉलीडे सीजन में चाहिए तो उस इन्वेस्टर को थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़े. तो इस चीज़ के लिए मैं एक सोल्यूशन वैसे प्रपोज करता हूँ, राइट, थ्रू योर चैनल, राइट, कॉफी विद क्रिप्टो. कॉफी विद अच्छा, क्रिप्टो. आपने कॉफी तो ली नहीं अभी मैं तक? अभी लेता हूँ कॉफी. तो the only reason why I'm suggesting this particular solution, I'm not sure that how much viable this concept will be, but somewhere or the other अगर किसी फाउंडर के दिमाग में क्लिक करता है ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो एक मार्केट प्लेस क्रिएट किया जा सकता है प्रॉपर्टीज को लेके. एक प्रॉपर्टी के 10 ओनर हैं, दूसरी प्रॉपर्टी के अगले 10 ओनर, तीसरी प्रॉपर्टी के अगले 10 ओनर, ऐसे ही 1000-2000 ओनर्स ने मिलके आप बोल सकते हो 100-200 प्रॉपर्टीज अलग अलग राइट हुई हैं. उसके बाद उसका पूरा एक मार्केट प्लेस क्रिएट किया हुआ है. अब मान लो मेरे को मनाली में जाना है और स्टे करना है 1 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए, एक प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है दूसरी प्रॉपर्टी अवेलेबल है मेरी स्पेसिफिक डेट्स की डिमांड पे. बाय द एंड ऑफ द डे मेरे को जाना तो मनाली है ना, राइट. मेरे को तो स्नो कवर्ड माउंटेन्स देखने हैं ना. अब मैं एक होटल से देखूं या दूसरे होटल से देखूं, दिखेगी वही बर्फ. 19-20 का फर्क हो सकता है एक व्यू पे कि कैसा व्यू है. बट हाँ, अगर मैं होटल से बाहर निकल के या फिर बालकनी में बैठ के अगर वो व्यू एंजॉय करना चाहता हूँ तो व्हाई नॉट. और ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन ऐसे आर्यन आपने एक प्रॉपर्टी में 10% की ओनरशिप ली हुई है RWA के थ्रू, दूसरी प्रॉपर्टी में 10% की ले ली है, तीसरी प्रॉपर्टी में आपने 10% की ली है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज में आपकी मल्टीपल ओनरशिप भी हो सकती है, राइट. बट एक Web2 इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो एक प्रॉपर्टी खरीदने में भी इंसान का दम निकल जाएगा एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को 100% ओनरशिप करने में. और इसके थ्रू हमारा रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी पे नहीं आए लोग तो दूसरी में आ गए, दूसरी में भी नहीं है चलो तीसरी में आ गए, राइट. देयर इज अ फेमस सेइंग वंस अगेन, राइट, कि आप सारे के सारे एप्पल्स एक बास्केट में नहीं रखते. yes. सारे के सारे एग्स एक बास्केट में आप नहीं रखते हो. यू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियोज. बहुत सारे लोग मेरे से ये भी कहते हैं कि बिटकॉइन एक टाइम पे विनोद $1 के नीचे था, मतलब से 80 सेंट्स का था, राइट. अगर तब हमें मिल जाता, राइट, और आज $70,000 पे है, राइट, वी वुड नॉट बी मिलियनेयर, रादर बिलियनेयर्स इन दैट केस. उनके लिए मेरे तरफ से जवाब ये है कि जब वो 80 सेंट का बिटकॉइन था ना, तो 80 सेंट से तो $70,000 की जो जर्नी है वो हार्डली 21 लोगों की होगी. जर्नी ऐसे होती है, 80 सेंट का था, $8 पे आके बेच दिया होगा. एग्जैक्टली, राइट. बहुत एग्जांपल्स हैं, बहुत एग्जांपल है उस चीज को लेके मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट में इतनी लंबी जर्नी हार्डली किसी ने देखी है, बहुत कम लोग होंगे. ये वाला कॉन्सेप्ट ना आज तक कोई नहीं सोच पाया. ये वो ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक अनलकी कॉन्सेप्ट होता है कि जब मैं खरीदता हूँ, ठीक है, तभी डंप होता है, और जब मैं बेचता हूँ तभी वो ऊपर जाता है. तो इसके ऊपर मेरे को आज एक मीम याद आ रहा है कि मैंने खरीदा और वो गिर गया. वही सेम लेके थी. याद है ना, मेरे भी दिमाग में गिर गया, जो आप बोल रहे और जब मैंने बेचा तो वो ऊपर चला गया, मैंने खरीदा फिर वो फिर नीचे चला गया. वो एक ना एक विशियस साइकिल है जो कि चलती रहती है. एग्जैक्टली. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बोलना नहीं चाहिए, बट
चिट फंड्स की तरह चलते हैं, 21 दिन में पैसा डबल वाला सीन, एंड देन 21वें दिन जाके देखोगे तो ऑफिस जैसे गायब है। ऑफिस गायब है, तो यहाँ पे वेबसाइट गायब है, ट्विटर अकाउंट गायब है, टेलीग्राम अकाउंट बैन हो चुका है, फाउंडर्स ने अपना टेलीग्राम अकाउंट बंद किया है। अब बैकग्राउंड में जाके उस चीज को समझोगे तो क्या होगा, मैं पिक्चर बैकग्राउंड की बताता हूँ कि फाउंडर अपने को फाउंडर से बाकी सब लोग किसी आइलैंड पे, हुआ आइलैंड या कहीं पे आराम से मौज काट रहे होते हैं। तो अब देखो उन्हें लेन देन नहीं है दुनिया में, क्या हो रहा है। देखो उन्होंने रिटायरमेंट अपनी 1 साल के अंदर ले ली है, तो यहाँ पे कोई भी 60 साल काम नहीं करता है, पहली चीज। बट हाँ, फिर वो लोग शॉर्ट माइंडेड है, रादर से शॉर्ट साइटेड है। सो इन द केस ऑफ जो ये हमारे नॉट द मीम टोकन्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड टोकन्स हैं या Right. जिनके पीछे कोई यूटिलिटी है, सो यू गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज यूटिलिटी पेपर्स पे नहीं होनी चाहिए। यूटिलिटी सिर्फ वाइट पेपर पर नहीं होना चाहिए। यूटिलिटी हैज़ टू बी देयर इन द फॉर्म ऑफ सम टेक्नोलॉजी विच Right. दे आर इवॉल्विंग, राइट। यूटिलिटी कहने के लिए तो यार मैं भी कह सकता हूँ कि यार आई एम क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ मशीनरी इन द ईवी डोमेन and where I'll be driving the car और आपको रिटर्न में टोकन्स मिलेंगे। सो दैट इज अ यूटिलिटी बट इट्स ऑन द पेपर। राइट। बट मेरा ये कॉन्सेप्ट सुनने पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा कि हाँ भाई इसमें तो इफ़ आई एम ड्राइविंग मुझे रिटर्न्स मिल रहे हैं, मुझे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, पर प्रैक्टिकली कितनी वो पॉसिबल है, उसके पीछे का जो पूरा नोमेनक्लेचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो देखना ज़रूरी है। Right. एंड दैट कम्स with only the knowledge of the technology and especially in the Web3 domain and the blockchain domain, जो most of the people doesn't do it. तो ये जो अभी आपने पॉइंट रेस करा कि यूटिलिटी जो होती है सिर्फ वाइट पेपर पे नहीं होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर सिर्फ वाइट पेपर पे दिखा के फंडिंग रेस करते हैं, इवन कम्युनिटी को भी चीट करते हैं। तो जो लोग ये पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग हो सकती है, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, कि वो यूटिलिटी सिर्फ आपके वाइट पेपर पे एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, इन रियलिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अगर अभी हम मीम कॉइन्स की बात करते हैं, तो अगर आप क्या सजेस्ट करते हो कि ये जस्ट हाइप बेस्ड कॉइन्स हैं या फिर कुछ इनका आगे चल के और कुछ फ्यूचर पर्सपेक्टिव हो सकता है? नहीं यार, हो सकता है। मैंने बोला ना कि टीम की विजन और टीम की इंटेंशन, ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो डॉज कॉइन अगर सिर्फ एक प्योरली मीम कॉइन होता तो वो आज अपने आप को फर्दर डॉज चेन या फिर अपने डैप्स वगैरह क्रिएट नहीं कर रहा होता, ठीक है। सिमिलरली शिबा ही तो मीम कॉइन ही था ना, ठीक है। उसने इतना, शिबा के मार्केट कैप इतनी हो गई थी कि उसको ज़रूरत नहीं थी कुछ भी करने की, बट टेक्निकली दे वांटेड टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी जिन्होंने ट्रस्ट किया, फॉर एग्जांपल, ठीक है। एंड नॉट ओनली दैट, दे हैव व्हाट आई हैव हर्ड इन द इंडस्ट्री, शिबा ने बहुत ज़्यादा चैरिटी में काम किया। सो व्हाटएवर दे हैव गेन्ड थ्रू द कम्युनिटी, दे हैव गिवन बैक टू द कम्युनिटी एज वेल, यू नो, इन द अदर चैरिटीज हाउसेज, और आज भी कर रहे हैं, मैंने देखा है। और नॉट ओनली दैट, दे बीन वर्किंग क्लोजली विद द प्रोजेक्ट्स जो कि चैरिटी में ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं। सो आई नो कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स वेयर शिवा की टीम इन्वॉल्व है, एंड दे आर मेकिंग श्योर कि उस पर्टिकुलर पर्पस को वो लिटरली ट्रांसपेरेंट करें चैरिटी में। अगर आप और मैं कुछ भी डोनेट कर रहे हैं ऑन द ब्लॉकचेन, सो इट शुड, द मनी शुड गो टू द पर्पस, वो किसी और पर्पस में यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। मनी शुड गो टू द पर्पस वेयर यू एंड मी आर डोनेटिंग। So there are a lot of projects where the Shiba team is actually advising at the moment. What I believe nowadays जो अभी happen हो रहा है, like अगर हम सोलाना इकोसिस्टम की भी बात करें, इवन बेस इकोसिस्टम की भी बात करें, I believe कि यहाँ पे क्रिप्टोज में जो पीपल आ रहे हैं वो अपने आप को इन्वेस्टर्स कहते हैं, बट इन रियलिटी वो सिर्फ गैम्बलिंग ही कर रहे हैं मीम कॉइन्स के ऊपर, कि इनमें से कोई भी एक चल गया तो हम कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। यार देखो यार, हम ये रिपीटेडली कह रहे हैं कि मीम कॉइन्स इज प्योर गैम्बल, ठीक है। मीम कॉइन्स को आप गैम्बलिंग के अलावा कुछ को कंसिडर करो ही मत। एग्जैक्टली। अनलेस एंड अनटिल यू सी द डेवलपमेंट इन द इकोसिस्टम और द डेवलपमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो कर रहे हैं। अगेन, यूटिलिटी ऑन द वाइट पेपर इज अ डिफरेंट थिंग, बट यूटिलिटी ऑन द ग्राउंड इज अ डिफरेंट थिंग। सो वो फिगर आउट करना वो बहुत ज़रूरी है। सो आई डोंट थिंक सो कि यू नो सोलाना इकोसिस्टम क्या आ गए हैं, हाँ भाई मैंने एक में डाल दिया, बैक टू बैक अभी पीछे हुआ, ठीक है ना। आप पहले आप ERC20 के ऊपर मीम कॉइन्स आते थे, अब सोलाना इकोसिस्टम पे आए, फिर एक आया आपका बेस के ऊपर आया, बेस के ऊपर आया, ठीक है ना। देन ऑफ कोर्स जो जो चेंज आएंगी आगे उस पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो एचबार के ऊपर भी काफ़ी हैं, हेडेरा के ऊपर हैं, अवलांचे के ऊपर है। तो आप समझो मीम कॉइन की एग्जिस्टेंस पता क्या है? मीम कॉइन की एग्जिस्टेंस ये है कि जो बची कुची लिक्विडिटी रह गई है ना, उसको अपनी तरफ खींचना। एग्जैक्टली। बस वो लिक्विडिटी को अपनी तरफ पुल करने का तरीका है, क्योंकि यस 100 में से 2 अच्छे चलेंगे,
पर 100 में से 98, 100 में से 98 जो हैं वो नहीं चलेंगे। तो वॉट एवर यू पुटिंग इन देयर, इट इज़ गोइंग ऑन फ्रॉम योर एंड, इट्स अ वेस्ट। बट जिसका प्रोजेक्ट है, जिसने डेवलपर है, उसके लिए वो उसका एक लिक्विडिटी ग्रैब करने का तरीका है, रग पुल करने का तरीका है। दैट्स व्हाट। सो मीम सीजन primarily about burning the liquidity of the retail and make them so exhaustive कि यार वो आगे जो टाइम अच्छा आ सकता है ना, वो उसमें इंटरेस्ट ही ना ले पाए। क्यों? क्योंकि उसका हाथ जल गया है। दैट्स इट। और प्लस तो मीम कॉइन को आप ऐसे गैम्बल लो, उसमें उतना ही लगाओ जितना आपको खोने पे कोई प्रॉब्लम ना हो। है क्रिप्टो बहुत रिस्की है, ठीक है, मेरे कहने पे या किसी के कहने पे मत खरीदना। डू योर ओन रिसर्च Before investing. एग्जैक्टली, डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। चाहे ये बोले मैं बोलूं, अपना रिस्क एपेटाइट देखकर ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और हाँ, ये नॉर्मल एसेट्स और स्टॉक से बहुत ज्यादा रिस्की है। एंड टॉकिंग ऑफ दैट, आपने थोड़ी देर पहले सीड फ्रेज के बारे में मेंशन किया था, दैट यू यूज्ड टू शेयर योर सीड Yes. फ्रेज विद योर फ्रेंड्स, यस, राइट? एंड हम एक स्टेटमेंट बहुत बार बोलते हैं क्रिप्टो स्पेस में, and बहुत पॉपुलर भी है, नॉट योर कीज नॉट योर नॉट योर क्रिप्टो, या राइट। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से मैं देखूं, ठीक है, अभी हम वॉलेट्स की बात करते हैं, Yeah. क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपके पास वो सीड फ्रेज है, वो किसी ना किसी एक वॉलेट से लिंक है, Yeah. राइट? एंड पूरी क्रिप्टो स्पेस में यू कैन इजीली डिवाइड वॉलेट्स इनटू टू पार्ट्स, हॉट वॉलेट्स और कोल्ड वॉलेट्स। Yeah. लाइक अगर आप ऑडियंस के लिए इनको थोड़ा और इजी बता सकते हो। तो ये हो गई अपनी हॉट वॉलेट की एक छोटी सी स्टोरी। अब मैं क्विकली दोनों के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। तो डिफरेंस आर्यन ये होता है, हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट क्रिप्टो को स्टोर करने के दो अलग अलग तरीके होते हैं, Right. ठीक है। हॉट वॉलेट यूजुअली एक ऐसा डिवाइस होता है जो पेन ड्राइव की तरह लिखता है, उसको आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो, वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। और एज अ क्रिप्टो ट्रेडर, अब मैं क्रिप्टो ट्रेडर यूज कर रहा हूँ इन टर्म नॉट जस्ट बिकॉज यू आर अ क्रिप्टो ट्रेडर, बट अगर आप हफ्ते में 1-2 बार भी ट्रेड करते हो तो यू बिकम अ क्रिप्टो ट्रेडर। राइट। उस टाइम अगर आपको एक ट्रांजैक्शन अप्रूव करना है तो आपको फिजिकली एक बटन दबाना पड़ेगा या फिर अपने साइट में से जाके उसे अप्रूव करना पड़ेगा, जब तक आपका फिजिकल वॉलेट कनेक्टेड नहीं है आपके लैपटॉप से। तो जब तक वो फिजिकल डिवाइस आपके लैपटॉप से कनेक्टेड नहीं है जिसमें आपके क्रिप्टो का सीड फ्रेज रखा हुआ है, आपका कोई भी ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं होगा। अर्नव, इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि आपके लैपटॉप पे रखे हुए जो सॉफ्टवेयर वॉलेट है वो हैक नहीं हो सकता है। क्या आप समझ रहे हो? तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि आपके लैपटॉप में जो आपने मेटामास्क का या फिर फैंटम वॉलेट का एक्सटेंशन लगा रखा है, हो सकता है कल को वो हैक हो जाए क्योंकि उधर सीड फ्रेज है। लेकिन जब तक आपकी परमिशन के बिना आप अप्रूव नहीं कर रहे हो ट्रांजैक्शन को अपने हॉट वॉलेट पे, आपके फंड्स कहीं जाएंगे ही नहीं। क्योंकि एक हैकर रिमोटली आपके लैपटॉप को एक्सेस करके आपका सीड फ्रेज देख के अप्रूव कर लेगा, ठीक है, डन। लेकिन जब तक फिजिकली आपका वॉलेट उसमें कनेक्टेड नहीं है, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये होता है हॉट वॉलेट को यूज करने का तरीका क्रिप्टो में, अगर आप क्रिप्टो में फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, सेफ रहने के लिए। सेफ रहने के लिए। बट इट इज नॉट कंप्लीटली सेफ बिकॉज खुद ही सोचो, बहुत सिंपली नाइव लैंग्वेज में समझाता हूँ। एक ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एक ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई है, वो इंटरनेट से एक्सेसिबल है, तो कल को इजीली हैक हो सकता है, नो मैटर व्हाट कंपनी क्लेम्स व्हाट। मेरे को सिंपल लैंग्वेज में एकदम बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको अपना क्रिप्टो एक ऐसे डिवाइस में डालना है जो अनहैकेबल हो, तो आपको एक ऐसा डिवाइस चूज करना पड़ेगा जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप ही नहीं है। बट हाउ इज दैट पॉसिबल? एंड दैट इज वेयर कोल्ड वॉलेट्स कम इन। कोल्ड वॉलेट्स उन लोगों के लिए होते हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म के लिए अपना क्रिप्टो होल्ड करके रखना होता है। एंड दे बेसिकली लुक समथिंग लाइक अ मटेरियल बिटकॉइन का कार्ड, राइट? राइट। जहां पर एक स्टील का कार्ड है, आगे आपका वॉलेट एड्रेस है, पीछे आपका सीड फ्रेज रखा हुआ है। अगर आपने कोई भी क्रिप्टो खरीदा है, आप उसको सेल करो, यूएसडीटी में कन्वर्ट कर दो और उस यूएसडीटी को बेसिकली अपने कोल्ड वॉलेट पे जो सामने एड्रेस है वहां पे भेज दो। तो कोल्ड वॉलेट में जब आपने अपना यूएसडीटी अपने कोल्ड वॉलेट में डाल दिया है, आप उसमें बस डालते जाओ, नो नीड टू टेक इट आउट, एग्जैक्टली। नो नीड टू टेक इट आउट। इवन आप दूसरे क्रिप्टोस भी स्टोर दूसरे क्रिप्टो भी स्टोर कर सकते हो अपने, हाँ, अपने कोल्ड वॉलेट में। बट द ओनली प्रॉब्लम विद कोल्ड वॉलेट इज कि ऑल्दो ये सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है क्रिप्टो स्टोर करने का, बिकॉज इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप नहीं लगी हुई है, ये हैक हो ही नहीं सकता। बट द मोमेंट यू नीड टू विदड्रॉ योर फंड्स, आपको अपने कोल्ड वॉलेट को एक एक्सचेंज से कनेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है? एंड द मोमेंट यू कनेक्ट योर सीड फ्रेज टू एन एक्सचेंज, यू नेवर नो कि उसके साथ क्या हो सकता है। कल को वो एक्सचेंज हैक हो जाएगा, क्या पता वो एक्सचेंज क्लेम कर रहा है कि सीड फ्रेज हमने नहीं स्टोर करा हुआ है बट उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है। So I think that is the only problem with cold wallets. So that was your difference between hot and cold wallets, and who uses hot wallets,
who uses एंड cold अगर मैं wallets. अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं, हॉट Yeah. वॉलेट्स और कोल्ड वॉलेट्स, Yeah. बेसिकली अगर अब मैं ऑडियंस के लिए 1 मिनट एक्सप्लेनर दूं, हॉट वॉलेट्स क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए जो इंटरनेट से हमेशा कनेक्टेड रहता है, कोल्ड वॉलेट्स इज बेसिकली जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहता है एंड आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उसमें Yeah. जाते हो, राइट। लेकिन अब मेजर डिफरेंस जो आई गेस कंफ्यूजन भी आज की डेट में, आप इंडियन मार्केट में कह लो, एशियन मार्केट्स में कह लो, वर्ल्ड वाइड भी कह लो, लोग कोल्ड वॉलेट्स को हार्डवेयर वॉलेट समझते हैं, Yeah, बट दिस इज नॉट ट्रू, yeah, बिकॉज हार्डवेयर वॉलेट्स लोगों को लगता है कोल्ड वॉलेट्स याद करें तो दैट इज अ फिजिकल वॉलेट, जैसा Yeah. आपने भी बताया कि फिजिकल वॉलेट है, Hmm. तो लोग वो चीज कंफ्यूज कर जाते हैं कि हार्डवेयर वॉलेट इज अ फिजिकल, वो कोल्ड वॉलेट, yeah. बट इन रियलिटी वो नहीं होता। नहीं तो होता। अगर ये ऑडियंस के लिए आप थोड़ा सा और बता सकते हो तो। ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज चाहे आप एक हॉट वॉलेट लो या फिर आप एक कोल्ड वॉलेट लो, Right. आपको दोनों के फिजिकल डिवाइसेस मिलेंगे, ठीक है। आपका हॉट वॉलेट एक पेन ड्राइव की तरह दिखेगा यूजुअली, और आपका जो कोल्ड वॉलेट है वो किसी भी तरीके से दिख सकता है, बट Pen drive मोस्टली में भी आता है। या वो किसी भी तरीके से दिख सकता है। लोग अपने बिटकॉइन को पहले एक पेन ड्राइव में ही स्टोर करके रखते हैं, Right. बिटकॉइन के सीड फेसेस को, राइट। So the main difference between a hot and cold wallet is you have to make sure that the cold wallet is not hackable and basically does not have any kind of electronic chip on it. That is basically how you define a cold wallet. ठीक है? एंड जैसे आपके वो हार्डवेयर वॉलेट में वो चिप आ जाती है, तो That दैट becomes चिप a hot कैन wallet. बी हैक्ड, क्योंकि वो Yeah. ब्लूटूथ या वाईफाई से कनेक्टेड रहती है, Exactly. एंड दीज नेटवर्क्स आर वेरी प्रोन टू अटैक्स। Exactly. ठीक है, अगर किसी को भी नेटवर्क की बेसिक नॉलेज भी Yeah. है, इवन ही इज नॉट अ हैकर और शी इज नॉट अ हैकर, अगर उसको नेटवर्क्स की नॉलेज है तो इवन वो भी हमारे वाईफाई का पासवर्ड यूज कर सकते हैं बिना Easily. पासवर्ड जाने, Easily. राइट। सो दिस सेम थिंग कैन बी हैपेंड विद द हार्डवेयर वॉलेट्स दैट हैव दीज इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। Exactly. So I think that's it. If you want to differentiate between a hot and cold wallet, just see कि दोनों डिवाइसेस के बीच में किसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप है। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप है वो एक हॉट वॉलेट बन गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप नहीं है वो एक कोल्ड वॉलेट बन गया। The fact of the matter is, a lot of companies they claim to have their products in the name of cold wallets, राइट, पर वो होते नहीं है। जैसे कि भाई हमारा ये कोल्ड वॉलेट है, इसमें बस एक बटन है, इस बटन को आप दबाओगे तो आपका ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाएगा, बट इट्स अ कोल्ड वॉलेट। भाई ये इंटरनेट से तभी कनेक्ट होगा जब आप इसको कनेक्ट करके रखोगे। अरे भाई मैं उसको इंटरनेट से जैसे ही कनेक्ट कर दूंगा, तुम्हें एक्सेस तो मिल गया ना, तुम कुछ भी कर सकते हो। अब मैं एक 30 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हूं, बट मुझे इतना पता है कि द मोमेंट समथिंग इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इट कैन इजीली बी हैक्ड। सो गाइस, इफ यू फाइंड एन इलेक्ट्रॉनिक चिप ऑन अ डिवाइस, इट्स नॉट एट ऑल अ कोल्ड वॉलेट, इट्स अ हॉट वॉलेट। आई फील लाइक 90% गलती लोगों की ही है, लोगों की है। 100%। मतलब मैं 100% ये बिलीव करता हूँ कि 90% गलती लोगों की है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज तुम बेवकूफ हो क्या? तुम इंटरनेट इतने टाइम से यूज कर रहे हो, तुम्हें पता है कि इतने सारे स्कैम होते रहते हैं। एक पर्टिकुलर चीज जो तुम्हें रातों रात मिलियनेयर बना देगी, तो इस हिसाब से तो तुम्हें बहुत सारे लोग अपने आसपास, चाचा ताऊ, तुम्हारा नेबर, सबका तुम्हें दिखना चाहिए कि ये लोग करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं या मिलियन में पैसा कमा रहे हैं। फिर 10,000 डाल के इन्होंने 50,000 60,000 कर लिया। अगर सब लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब देयर इज समथिंग फिशी। सो वॉच द वीडियो, देन डू योर ओन रिसर्च। इफ यू आर नॉट डूइंग योर ओन रिसर्च, एक बंदे ने जो बोले वो तुमने सुन लिया, उसके बाद पैसा भी लूज कर दिया, देन यू आर टू बी ब्लेम्ड। सोशल मीडिया एंड इनफैक्ट नॉर्मल मीडिया इज सोल्ड आउट, वी नो इट, राइट? सो मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट कंसिडर करता हूँ बिकॉज आई मेक वीडियोस, राइट? लॉट ऑफ पीपल विल क्रिंज बट लेट देम क्रिंज, बट अल्टीमेटली मैं वही वीडियोस बनाऊंगा ना जो चलेंगी, राइट? मेरे पास इतनी आर्टिस्टिक लिबरेशन नहीं है कि मैं वो वाली वीडियोस भी बनाता रहूं जो लोग देख ही नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट फॉर अ वाइल आई एम नॉट गोना बी मेकिंग Web3 educational content on Instagram. I might do it on YouTube because people come there for education. बट मैं वही करूंगा जो लोग देखेंगे। और इसी के लिए तो अचानक से हवा में ये एयर ड्रॉप इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं। ये लोग दूसरे एयर ड्रॉप इन्फ्लुएंसर्स का कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हैं, अनलेस विद एन एलियस नेम। दूसरी कम्युनिटी ज्वाइन कर ली, दूसरे यूट्यूबर्स को देख लिया, उनके कहीं से कुछ कुछ उठा के comment crypto to get my portfolio के number of coins. People comment crypto, they go and they invest and they lose it. So you have to understand everything is a supply and demand game. Whatever you see on social media is fake. Maximum content that is released on social media is fake. I've worked in this industry for 4 years. RN has worked in this industry for a long time as well. Maximum of these things are fake and crypto में scams इतने ज़्यादा होते हैं. So you just have to be beware कि तुम किसकी advice सुन रहे हो, because जो तुमको coin खरीदने के लिए बेच रहा है maximum of the time उसको project ने पे करा हुआ है वो coin promote करने के लिए। तो before तुम्हें profit हो, वो आदमी उसका 100x 200x profit ले चुका है। ये जो स्कैम्स होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं न्यूबीज को आने से रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे इवन Web2 न्यूज़ चैनल्स जो है इसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, राइट? तो उन लोगों के लिए आप क्या इंफॉर्मेशन देना चाहोगे जिनके साथ ये स्कैम हो चुका है
या फिर जिनकी फैमिली में हुआ हो एंड दे स्टिल वांट टू एंटर या इस स्पेस से बैकआउट कर चुके हैं? Yeah, it's very simple, very sober, and very cute advice. Please, please, please get into crypto. If you are hearing about crypto right now, this industry is going to be very big. Right now, we're too early. It's not too late at all. I got into crypto only because I saw it as an opportunity, like we had during the Apple event. जब दुनिया में पहली बार एक iPhone इंट्रोड्यूस हुआ था, उस टाइम if you just knew how to make an app, आप रातों रात एक मिलियनर बन सकते थे, बिकॉज आपको फंडिंग मिलना बहुत इजी हो जा रहा था. आपको आईफोन का बस एक अच्छा खासा यूज केस के साथ एक ऐप लॉन्च करना है और लोग उसको यूज करना शुरू कर देंगे. वेब3 क्या है भाई? एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी है, और अगर आपने किसी भी अच्छे यूज केस का डैप बना दिया, यू कैन इजीली गेट अ लॉट ऑफ फंडिंग एज वेल. ठीक है, सो गेट इनटू क्रिप्टो नो मैटर व्हाट. नाउ इफ यू आर न्यू टू क्रिप्टो, मेक श्योर कि आप एक्स अमाउंट ऑफ पैसा लाओ जो आप लूज करने के लिए एकदम रेडी हो. ठीक है, एक्स अमाउंट ऑफ पैसा आप ले आओ, और बस देखो 1000-2000 रुपए से आपका कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है, क्योंकि आपकी गैस फीस ही इतनी ज्यादा होती है, वो सब चली जाएगी. ट्राई टू गेट, मैं सबको ये एडवाइस देता हूँ कि ट्राई टू गेट 5 to 10,000 रुपीज जो आप लूज करने के लिए एकदम रेडी हो. मैं पहले ही बोल रहा हूँ. या फिर अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है लूज करने के लिए, जस्ट कीप अप्लाइंग टू अ लॉट ऑफ एयर ड्रॉप्स. इट्स एयर ड्रॉप सीजन राइट नाउ. अगले 2-3 महीने तक चलता रहेगा. कहीं ना कहीं से आपको $500-600 इजीली मिल जाएगा, एंड दैट इज गुड इनफ टू स्टार्ट. वंस यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ कैपिटल, प्लीज बी रेडी टू प्ले अराउंड विद इट जितना हो सके. ऑल ऑफ इट. हाँ, प्ले अराउंड विद इट कहने का मतलब है सिर्फ ट्रेड ही नहीं भाई, बहुत सारे डैप्स के साथ खेलो ना. तुम जाओ डैप्स को यूज करो. grass.io है तुम्हारा, airdrops.io है, वहां पे जाके हर जगह तुम अप्लाई करो. बहुत सारे एयरड्रॉप्स तुम्हें वहीं पे मिल जाएंगे. द मोमेंट यू गेट मनी, तुम डैप्स को यूज करो. तुम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेड करना सीखो. सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे तो सबको आता है. ठीक है, जब तुम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में पहली बार ट्रेड करोगे, तुम्हें लगेगा अरे मेरा पैसा कहाँ चला गया, मेरे पास तो इथीरियम में $500 थे. वो कॉइन बेस के इथीरियम में $500 थे. अब उसको मेरे को ERC-20 पे जब मेरे को लाना है, तो मेरे को $100 का गैस फी देना पड़ेगा. तो मतलब जो मेरे पास $500 का इथीरियम बैठा हुआ एक चेन में, उसको दूसरी चेन में लाने में मेरे को $100 लग जाएगा. तो जब ऐसी ऐसी चीजें तुम्हें हिट करेंगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं भाई, इट्स नॉट लाइक बेसिक Web2 कि मैंने अपने जीपे से, फोन पे या पेटीएम पे ₹500 डाले तो उसमें ₹500 चले गए. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. सो गेट सम मनी विच यू आर रेडी टू लूज. इफ यू डोंट हैव मनी, नो प्रॉब्लम. grass.io या फिर airdrop.io नाम की साइट्स है, वहां पे जाओ. वहां पे सारे एयरड्रॉप्स आपके लिए लिस्टेड है. दिन में 2 घंटा निकालो, हर जगह अप्लाई कर दो. आपको $500-600 $1000 भी इजीली मिल जाएगा, इफ नॉट अ लॉट मोर. जैसे ही आपके पास पैसा आता है, देन यू स्टार्ट मेसिंग अराउंड विद डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, विद AMMs, मे बी विद अदर फन एप्लीकेशंस. फॉर एग्जांपल StepN नाम का जो ऐप है, नॉट प्रमोटेड, तो इट्स अ वेरी नाइस ऐप जहां पर यू बाय NFTs जो कि जूते की होती है, और जैसे ही आपने वो जूते की NFT खरीद ली, आप वॉक करोगे, आपको क्रिप्टो मिलता जाएगा, और उस आप क्रिप्टो को एक्चुअली में INR में कन्वर्ट कर सकते हो. राइट. कितना कूल प्रोजेक्ट है ये. और ऐसे सेम प्रोजेक्ट्स Web2 में भी एग्जिस्ट करते हैं, बट Web3 is just cooler. So yeah. ये बहुत टॉन्टिंग वे हो रहा है आपने. हम पीयर टू पीयर स्कैम्स की बात करते हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक नया कॉन्सेप्ट भी आता है, हवाला मनी करके. वैसे हवाला मनी काफी पुरानी टर्म है, बहुत एंशिएंट टाइम से यूज हो रही है. ठीक है, लेकिन ये आज की डेट में इसको पीयर टू पीयर स्कैम से लिंक करा जाता है. तो अगर आप इस पे थोड़ा एनलाइटन कर सको. करेक्ट. सो पहले हवाला मनी, जस्ट टू गिव दिस थिंग कंटेक्स्ट. हवाला जैसे मूवीज में देखते थे कि एक नोट है, नोट का फोटो भेजा है, आप अगर मुझे पैसा, आपसे मेरे को कैश लेना है या कैश डिपॉजिट करना है, मैं वो नोट आपको दिखाऊंगा, यू विल मैच द नंबर्स ऑन द नोट, एंड वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है. दैट इज व्हाट हवाला लुक्स लाइक, एटलीस्ट इन मूवीज. तो एक्चुअल में कैसा होता है? एक्चुअल में अगर कभी ऐसा दिन ना आए, बट लाइक एक्चुअल में जो मैंने सुना है फ्रॉम फोक्स हु हैव इन्वेस्टिगेटेड, जो साइबर पुलिस से स्टोरी सुनी है ऑफ हाउ दे गॉट सर्टेन दिस थिंग रैकेट्स. इनफैक्ट ईडी ने काफी हवाला मनी के रैकेट्स पकड़े इन इंडिया. दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. तो होता क्या है ये, अगर एक्चुअल में क्रिप्टो सेंस में बताऊं तो सेम, कमिंग बैक टू द P2P दिस थिंग मैकेनिज्म, आई ट्रांसफर यू XYZ अमाउंट ऑफ क्रिप्टो, $1000 लेट्स से, एंड देन मैं बोलूंगा मेरे को यार टैक्स पे नहीं करना है, 30% टैक्स पे नहीं करना है, TDS भी नहीं करना है, बिकॉज आई डोंट वांट टू शो वेयर आई गॉट दिस मनी फ्रॉम. राइट. एंड मैं कहूँगा मेरे को कैश में सेटल कर दो. तो अगेन इन द कमिंग बैक टू द प्रीवियस एग्जांपल, आप अगर मैं आपको क्रिप्टो ट्रांसफर कर रहा हूँ, यू विल सेंड मी दिस थिंग कोड कि यहाँ पे XYZ जगह जाओ,
नोट दिखाओ, फोटो दिखाओ एंड कैश ले जाओ। ओके सो टेक्निकली वो हवाला का सिस्टम वही है, नोट ले जाओ, दिखा के पैसा ले आओ। बट क्रिप्टो में वो जो सेटलमेंट है कि पहले बैंक अकाउंट ट्रांसफर हो जाता था, एंड हवाला इज वेरी प्रेवलेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया एज वेल। आई मीन जो मिडिल ईस्ट सर्किट है, योर सर्टेन योर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, so because of a lot of trafficking, a lot of drug trafficking, human trafficking, it's a global phenomenon कि ये चल रहा है, and it's very sad that उसका कोई अभी तक end नहीं हुआ है। It's a age old practice, but maybe in the coming times with new technologies, जैसे scammers नई technology ला रहे हैं, government is working on these things and likely है कि CBDCs पकड़ा also. जाएगा। CBDCs yes, तो वो है CBDCs में prevalent issue is कि there should be cross governmental transfer of information, like that smooth channel has to be there। अगर वो CBDC हो भी जाए but smooth flow of information नहीं है, Right. then again it defeats the whole purpose। अगर if that thing is there, then I think yes, to a certain extent it can come it down by more than 50%। तो वही है, अगर क्रिप्टो में सेटल हो रहा है, आपको कैश लेना है या आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो, क्रिप्टो ले रहे हो टू अवॉइड टैक्सेस, TDS, या इवन टैक्स वाला इशू नहीं भी, आपको अपने फाइनेंशियल प्रोफाइल में वो दिखाना नहीं है कि ये पैसा कहीं से इलिसिट सोर्स से आया है, देन यू डू हवाला इन क्रिप्टो। एंड सेम वैसे क्रिप्टो के साथ नहीं, वैसे बहुत एंशिएंट कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने बताया मिडिल ईस्ट से चलता हुआ आ रहा है, बस वो क्रिप्टोज में आ गया तो एक कहीं ना कहीं एवोल्यूशन हो गया हवाला मनी का। हाँ, मतलब एज मनी इवॉल्व्स, द स्कैम्स रिलेटेड टू इट आल्सो इवॉल्व, टेक्नोलॉजीज इवॉल्व। आपने बताया कि 3-4 दिन में भी रिकवरी हुई, तो लाइक इज देयर अ वे कि जो भी इस ऐसे स्कैम्स में फंसा है कि वो अपने पैसे वापस ला सके, लाइक एक प्रॉपर प्रोसीजर काइंड ऑफ थिंग? फर्स्ट ओके, सो प्रोसीजर के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेथड्स दैट गवर्नमेंट हैज सेट। फर्स्ट इज जैसे ही स्कैम हुआ है, फर्स्ट थिंग यू डू इज यू पुट अ रिपोर्ट ऑन साइबर क्राइम पोर्टल। सो इट्स अ गवर्नमेंट वेबसाइट, cybercrime.gov.in। यू कैन लॉग इन एंड पुट अप अ कंप्लेंट। ओके कंप्लेंट में आपसे बेसिक डिटेल्स पूछेगा, यू पुट इन एवरीथिंग, जो आपने वॉलेट एड्रेस में अगर क्रिप्टो भेजा है, कौन से वॉलेट एड्रेस पे भेजा है, या कहीं से रिसीव हुआ है कि आपको पहले किसी ने एक बेसिक सा कोई सस्ता सा क्रिप्टो भेज के बताया कि देखो मैं भी भेज रहा हूँ, आप मेरे को INR भेजो, एनीथिंग। रिसीविंग है, सेंडिंग है, तो ट्रांजैक्शन हैश जो है, क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस है, अगर आपने किसी को INR में भेजा है, फिएट में, तो किस बैंक अकाउंट में भेजा है, ट्रांजैक्शन ID क्या है, वॉट एवर डिटेल्स यू हैव, स्क्रीनशॉट्स ऑफ चैट्स, अपलोडेड ऑल ऑन द पोर्टल। अब इस पोर्टल पे जाने के बाद होता क्या है, लेट्स से आई एम लिविंग इन दिल्ली, आई एम लिविंग इन समवेयर इन नॉट दिल्ली फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे नियरेस्ट जो भी साइबर पुलिस स्टेशन होगा, ये वहाँ अलॉट हो जाएगा। साइबर पुलिस विल रीच आउट, दे विल चेक द केस डिटेल्स, एंड वाइल साइबर पुलिस को अलॉट भी हो जाएगा साइमल्टेनियसली बैक एंड पे, विद इन 15 मिनट्स, आई थिंक मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, बट 15 to 20 मिनट्स I4C ने क्या किया है, बैंक्स के साथ पार्टनर करके दे हैव मेड अ इंस्टेंट इंफॉर्मेशन का फ्लो वाला सिस्टम, वेयर लेट्स से मेरे HDFC से एक्सिस में गया स्कैमर के, स्कैमर ने उसको ICICI ले गया, AU बैंक, फिनकेयर, XYZ, जितने भी हॉप गया है, एक एक करके बैंक एक दूसरे को पास ऑन करते रहेंगे, एंड वो इन्फॉर्मेशन विद इन 15 मिनट्स इट विल बी ऑल इन द पोर्टल। पूरा उसका कहते हैं ना, वो एक जन्म पत्र दिख जाएगी, राइट। तो दैट यू विल सी इंस्टेंटली, एंड जैसे ही वो दिख गया, पैसा पता है, लाइन में जो अकाउंट्स है वो सबको लीन मार के डेबिट फ्रीज हो जाएंगे, तो कोई पैसा हिला नहीं पाएगा इधर उधर। एक बार वो हो जाता है, देन आप साइबर पुलिस पे जाओ, पुलिस देखेगा रिपोर्ट, दे रीच आउट टू दी पर्सन, लेट्स से अगर एक्सिस बैंक में पैसा रुका हुआ है, बैंक को बोलेगा कि कोई यूजर का जो भी है डिटेल्स, गिव अस द डिटेल्स, दे आस्क द यूजर टू कम इन, एंड दे, सो इट माइट बी अ जेन्युइन केस कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाला, कि मैंने आपको दिया बट आपने फिर किसी और को दे दिया, तो स्कैमर ने किसी और को पैसा दे दिया VDS लेके, तो दो स्कैम कर दिए इन अ सिंगल गो, और इट कैन बी अ स्कैमर डायरेक्टली हिमसेल्फ, राइट। तो वहां से पुलिस जाएगी, दे विल डू द इन्वेस्टिगेशन एंड दे विल कैच होल्ड ऑफ द मनी। सो साइबर क्राइम पोर्टल हैज बीन वेरी इफेक्टिव। मतलब जिसके साथ भी अगर कोई भी ऐसा साइबर क्राइम होता है, मतलब नॉट जस्ट रिलेटेड टू क्रिप्टोज, वो इस प्रोसीजर के थ्रू जा सकता है। हाँ, साइबर क्राइम पोर्टल हैज बीन लाइक हेल्पफुल, लाइक द मोस्ट हेल्पफुल थिंग आई थिंक इन इंडिया राइट नाउ, बिकॉज कितना गवर्नमेंट का रिपोर्ट्स आया दैट साइबर क्राइम एंड रादर UPI फ्रॉड्स in particular are at an all time high, तो at this time you need some government assistance, and वो I4C का जो साइबर क्राइम पोर्टल आया उसके फॉर्म में आया। एंड अगर अब हम इस पूरी इंडस्ट्री को लेकर चलते हैं, लाइक गवर्नमेंट की तरफ से इसमें क्या अभी आपको एक पर्सपेक्टिव दिख रहा है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर जो पीयर टू पीयर स्कैम्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये स्कैम्स भी शायद गवर्नमेंट को रोक रहा है इस पूरी इंडस्ट्री को अडॉप्शन देने के लिए? आई थिंक
स्कैम्स गवर्नमेंट को प्रमोट कर रहा है Okay. इस इंडस्ट्री को और एक्टिवली देखने के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली बीइंग द गवर्नमेंट इट विल इवेंचुअली फॉल ऑन द गवर्नमेंट कि यूजर सेफ्टी आप कैसे इंश्योर कर रहे हो. Exactly. तो गवर्नमेंट अगर स्कैम हो रहा है तो गवर्नमेंट और प्रोएक्टिवली देख रही है उसमें. FIU वाला प्रोविजन आया वेयर FIU हैज बिकम द AML CFT regulator for all the VAS, virtual asset service providers in India. Recent news आया था कि KuCoin ने रजिस्टर कर लिया है इंटरनेशनल एक्सचेंज, फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज. All on ramp, your leading exchanges, they are all this thing registered with FIU. FIU में very strict reporting mechanism भी है जिससे FIU is tracking कि सारे जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स है, इवन लाइक ऑन रैम्प, हम लोग ड्यू डिलिजेंस सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या हमारा सेफ्टी इज देयर और नॉट, क्रेडिबिलिटी है कि नहीं है, या जो हम दे भी रहे हैं डेटा, हाउ ट्रू इट इज इन इट्स सेंस. Exactly. That is their second good thing which I talked about, cyber crime portal. So I4C जो है, which is Home Ministry's cyber arm. So they have made this cyber crime portal and it has done fantabulous job. Within 15 minutes सारा पैसा ट्रैक हो जाता है layer by layer. That is there. Then अभी news आया है परसों ही of SEBI wanting to get into this crypto thing, because globally most countries में it is the Security Exchange Board which is Exactly. actually looking after crypto as a industry. सो इंडिया के सेबी ने भी इंडिया में ये जो एक अफर्मेशन दिया है ऑफ देयर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लुकिंग एट क्रिप्टो एंड वर्किंग टुवर्ड्स इट. दैट्स अ वेरी मेजर न्यूज. सो स्कैम्स बढ़ ही रहे हैं, अभी कम नहीं हो रहे, बट यू विल सी गवर्नमेंट रेगुलेशंस गोइंग अप विच इज एक्चुअली गुड फॉर द इंडस्ट्री. मतलब गवर्नमेंट अगर कंप्लाई करके गवर्नमेंट से वी आर एबल टू work a crypto industry, provide users with a Web3 experience, then I don't see anything wrong, and government is doing a fantabulous job. I'll tell you, India was one of the countries जो सबसे late शुरू किया था in terms of crypto regulation, but it has now become one of the leading countries in crypto regulation. There is no crypto law, Okay. and अभी जैसा जो चल रहा है, I don't think we need a crypto law in India right now. There is a requirement, I agree, but अगर जिस पेस पे अभी regulations चल रहा है कि सारे regulators आ रहे हैं, you have your AML CFT regulator, you have your cyber police का LEA coordination का regulator, you have your this thing SEBI is coming into picture. अगर ये लोग आ जाते हैं then we don't need a law. हमें एक suitable environment चाहिए जहाँ पे गवर्नमेंट के directions and directives हम लोग follow करेंगे. Like RBI का master direction होता है जो banks follow करते हैं. Exactly. तो अगर हमें भी गाइडलाइन मिल जाएंगे, वी आर फॉलोइंग इट. अभी FI को गाइडलाइंस आया, वी आर फॉलोइंग इट. सो वो जो एक फाइट है लॉ लाने का, वो फाइट थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए, एंड इवेंचुअली वो लॉ आ ही जाएगा जब एक बार अगर इंडस्ट्री इतना लेजिटिमाइज हो चुकी है. आई थिंक 50% वी आर देयर. तो DeFi अगर अभी भी बात करें अर्ली स्टेजेस में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं पैसे कमाने की, तो आपके हिसाब से एक हाइप है या एक इन रियलिटी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो अभी भी यूजर्स की आंखों में नहीं आ पाया? देखो, हाइप डेफिनेटली है. एवरी प्रोजेक्ट जो लॉन्च होता है वो कोशिश करता है कि वो एक नैरेटिव पे अपनी हाइप बिल्ड करे, या तो कोई नैरेटिव ऑलरेडी चल रहा होता है प्रोजेक्ट्स, उसमें अपने आप को फिट करने की कोशिश Right. करते हैं, या कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं. और हाइप डेफिनेटली है, बहुत लोग हाइप का शिकार होते हैं. देखो ये, एंड ट्रेडिशनली भी ऑल मनी मार्केट्स दो चीज़ों पे चलती है, एक फोमो पे, एक फड पे. राइट. सो फोमो एज यू ऑल नो कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फड इज फियर अनसर्टेनिटी डाउट. सो आपको एज अ DeFi यूजर आपका काम है, यू हैव टू सेपरेट द वैल्यू फ्रॉम द हाइप. जहाँ पे आप हाइप में अगर आप गिवन करोगे, क्योंकि देखो इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर है जो एकदम बाद में आता है, जो बड़े वेल्स हैं वो हाइप बिल्ड भी करते हैं कि रिटेल उसमें घुसे और वो डंप करके एग्जिट लिक्विडिटी बना ले रिटेल इन्वेस्टर को, और इसमें सफ़र रिटेल इन्वेस्टर ही करता है. बट अगर अगेन जैसे मैं कह रहा था कि इफ़ यू आर एबल टू सेपरेट दैट हाइप फ्रॉम द वैल्यू, देन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दैट, एंड आप इसमें फिर अच्छा पैसा कमा सकते हैं. बिकॉज वैल्यू फॉर श्योर है, बट उसमें कितनी हाइप है वो आपको यू हैव टू डिग डीप, आपको रिसर्च करना पड़ेगा. देयर ऑल्सो बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको इसमें हेल्प करते हैं टू सॉर्ट ऑफ फिगर आउट द फैक्ट्स कि एक प्रोजेक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है और एक्चुअल में उसमें कितने यूजर्स आ रहे हैं, कितने उनके ट्विटर पे बॉट्स हैं, कितने रियल एंगेजमेंट है, एंड ऑल दीज थिंग्स.
डीफाई में पैसे कमाने के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं दैट इज़ आपकी एक स्टेकिंग और यील्ड फार्मिंग। अगर किसी को भी पैसे कमाना है, बहुत अच्छे पैसे कमाना है, तो जनरली यही दो चीज़ें अडॉप्ट करता है। तो लाइक आपके हिसाब से अगर आप ऑडियंस के लिए एक बार थोड़ा सा क्लासीफाई कर सकते हो कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या है, और कुछ अगर आपकी साइड से टिप्स हैं कि अगर इसमें पैसे कमाने हैं तो। राइट, सो यील्ड फार्मिंग में देखो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। इट इज़ लाइक कि आपने कोई क्रिप्टो एसेट ले लिया, उसको फिर आपने रेंट पे चढ़ा दिया और आपको एक महीने का रेंट आता जा रहा है, राइट, विच इज़ अ वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन। इसके अलावा देखो, जो एक यूज़र को केयरफुल रहना चाहिए कि पहली बात प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड क्या है, राइट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वो होते हैं कि अनऑडिटेड भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें अगर आपने वो एंड दे मे बी ऑफरिंग क्रेजी रिटर्न्स, बट आपको थोड़ा सा फिगर आउट करना है कि वो हाउ आर दे एबल टू जैसे डू मेरे इट, साथ हुआ राइट, था। हाउ आर दे एबल टू डू इट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास कोई अंधा पैसा पड़ा है कि वो सारे का सारा पैसा स्टेकर्स को दे सकता है। बहुत सारे, और इस वजह से बहुत सारे जो जेन्युइन प्रोजेक्ट्स भी होते हैं वो भी थोड़ा सफ़र करते हैं, क्योंकि लोग नाम खराब कर जाते हैं स्कैम्स करके। बट अदरवाइज आपने एक बार अपना रिसर्च कर लिया, टॉप टियर का प्रोजेक्ट है, इसकी काफ़ी इसका काफ़ी नाम है, टीम सॉलिड है, टोकनॉमिक्स इनकी बढ़िया है, फिर इट कैन बी वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लाई योर कैपिटल। एंड इन द लॉन्ग लॉन्ग टर्म आप स्टेकिंग के लिए तब जाएं जैसे अगर आपको कोई एसेट होल्ड करके रखना है इन फॉर लेट्स से 6 months to an year, और आपको है कि चलो अभी ये मैं होल्ड करने पे इसमें भी अगर मेरा ऊपर कुछ रिटर्न बन जाए, सो दैट इट बिकम्स अ वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन। तो आप क्या प्रेफर करते हो, स्टेकिंग या फिर यील्ड फार्मिंग? सो मैंने दोनों करे हैं। सो आई प्रेफर, मतलब ऐसे देर इज़ नो डिस्टिंक्शन फॉर मी। फॉर मी व्हाट मैटर्स इज़ कि प्रोजेक्ट का फंडामेंटल स्ट्रांग होना Exactly. चाहिए, जो वो रिटर्न ऑफर कर रहे हैं वो मैथमेटिकली सस्टेनेबल होना चाहिए, एंड एज लॉन्ग एज आई एम मेकिंग मनी आई एम हैप्पी। ठीक है। और अगर अभी हम Web3 करियर्स की भी बात करें तो कुछ ऐसे भी करियर्स हैं जिसके बारे में अभी भी ऑडियंस को यहाँ पर नहीं पता, और वो कुछ ऐसे भी हैं जिसमें शायद एक 11th-12th क्लास का स्टूडेंट भी वो लेकर पैसे कमा सकता है। एंड इवन नो मैटर शायद आप 30-35 साल के भी क्यों ना हो, आप तब भी वो ऐसे ऑप्ट कर सकते हो। एंड कंपनीज स्पेशली Web3 में हायर भी कर रही हैं ऐसे लोगों को। एग्जैक्टली तो अगर आप कुछ डिफरेंट करियर्स ऐसे बता सकते हो जो ऑडियंस के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। एग्जैक्टली इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन आर्यन। अगर मुझे लगता है कि भाई एक कॉलेज स्टूडेंट है या जो बंदा स्टडी कर रहा है या Exactly. कुछ पढ़ाई कर रहा है किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, सो देखो आज हर एक पर्सन को, और ये चीजें मैं आज Web3 में होने के बाद ही नहीं बता रहा हूँ, 8 साल से ना जाने कितने हजारों लोगों को हमने मिल मिल करके 1-to-1 डेली बेसिस पे हमने लोगों को ये चीजें बताई है कि आज आप जो भी एजुकेशन ले रहे हैं उसके साथ साथ कुछ पार्ट टाइम में जो आपको फ्री टाइम मिलता है उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा जरूर करना चाहिए। इसके बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं फॉर योर पर्सनल ग्रोथ ऑल्सो एंड फॉर योर प्रोफेशनल ग्रोथ। आपको यहाँ से एक्सपीरियंस मिलता है। सो अगर आप न्यूबी हैं या आप एक स्टार्टर है, सो यू कैन अप्लाई विद सेवरल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आज Web3 के अंदर सारा का सारा गेम कम्युनिटीज का है। एग्जैक्टली। तो जितनी भी कंपनीज हैं बेसिकली, या एक क्रिप्टो को जो ग्रो करवाती है, जो डिमांड क्रिएट होती है बेसिकली, वो होती है कम्युनिटी की वजह से। So every company is focusing on growing their community in the several regions. Exactly. Right? So the companies, even I also want many times कि हम brand ambassadors को ढूंढ पाए। अगर एक स्टूडेंट है, he can also be the brand ambassador. He can do several marketing activities for the companies within the college campus. Absolutely, because crypto में most important है, देखो development company is doing it on their own end. सो अगर आपका बैकग्राउंड थोड़ा टेक से बिलोंग करता है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फ्रैंकली टेक से बिलोंग नहीं करता है, आई डोंट नो टू मच ऑफ टेक्निकल थिंग्स, बट एक बीटेक स्टूडेंट है जो सीएस में है, जिसको सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, कोडिंग की नॉलेज है, सो यू नो ही कैन ऑप्ट फॉर द करियर्स लाइक ब्लॉकचेन डेवलपर। क्या इसका कम स्कोप है? नहीं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा, और स्टूडेंट्स नहीं है या डेवलपर्स नहीं है। एग्जैक्टली। और एक ट्रस्टेड डेवलपर्स, एक अच्छे डेवलपर्स जिनको एक्चुअली में टेक्निकल नॉलेज है, बिकॉज एक कंपनी के पास ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये टेक अच्छा होना। आपको पता है कई सारे लोग हमें अप्रोच करते हैं, इवन कोई टेक का कोई एक सॉलिड बंदा हो तो बताओ, राइट? बिकॉज
कंपनीज को पता है एक ट्रस्टेबल टेक टीम उनको चाहिए डेवलपमेंट्स के लिए, तो बहुत सारी चीजें डेवलप करनी की होती है वेब3 के अंदर। सो अगर आप टेक बैकग्राउंड से हो, यू कैन डू सम कोर्सेज, इवन ब्लॉकचेन से रिलेटेड कुछ कोर्सेज कर लो, कितना टाइम लगेगा, लेकिन वहां से जो आप सीख करके आओगे, जो इंप्लीमेंट करोगे ना प्रोजेक्ट्स में, दैट इज गोइंग टू रियली पे यू वेरी वेल। इसके अलावा हम मार्केटिंग की भी हम बातें कर रहे थे जो, सो कंपनीज को कम्युनिटीज बिल्ड करनी है, यू कैन हेल्प इन दैट। फॉर एग्जांपल, जस्ट अगर आप एक न्यूबी हो, ओके, जस्ट चूज अ प्रोजेक्ट एंड बिकम अ मॉडरेटर फॉर द टेलीग्राम ग्रुप। आप एज अ मॉडरेटर वर्क कर सकते हो। और मॉडरेटर में करना है क्या है? करना क्या है? आपको सिर्फ वो देखना है कि कोई वहाँ पे कुछ हार्मफुल वर्ड्स यूज नहीं कर रहा है, राइट, एंड True. सारी जो भी चीजें हैं वो फ्लो में जा रही हैं, कोई किसी को अब्यूज नहीं कर रही, ये सारी चीजें आपको मॉडरेट करनी है। आर्यन, सिर्फ एक दिन के अंदर आप ट्रेन हो जाओगे। हाँ, ज्यादा It टाइम नहीं लगता। doesn't और take आई much गेस time. तो अब तो लोग इतना फ्रेंडली हो चुके हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, इन सब से, कि उन्हें वो एक दिन की भी ट्रेनिंग नहीं चाहिए, वो शायद आधे एक घंटे का काम है अब तो। आप सोच करके देखो कि आप लोगों को ना चैटिंग करने का पैसा मिलता है, आप लोगों को ना बातें करने का पैसा मिलता है, आप लोगों को कॉफी पीने का पैसा मिलता है लोगों के साथ। और ये सच है। मैं बता सकता हूँ। ये सच है। नहीं, और सिर्फ एक मनी मोटिवेशन भी नहीं, लाइक अगर हम कम्युनिटीज की बात करें, हमारी फिनफार्म की हमारी भी कम्युनिटी है डिस्कॉर्ड चैनल पे, बट Absolutely. जब लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें कोई नई चीज सीखने को मिलती है, चाहे वो मेरे से मिले, चाहे किसी और XYZ पर्सन से मिले, किसी थर्ड पार्टी से मिले, कोई माइनिंग में करना चाह रहा है, कोई ट्रेडिंग में करना चाह रही है, कम्युनिटीज एक तरीके से वो ग्रोथ इकोसिस्टम बन जाता है, वो एक हब बन जाता है कि यहाँ पर जो भी बंदा है वो कुछ नया सीख कर ही जाएगा। एग्जैक्टली। आई एम वेरी श्योर कि ये क्वेश्चन ना बाकी लोगों की भी काफी हेल्प करने वाला है कि बीइंग अ बिगिनर, अगर किसी को वेब3 में अपना करियर डेवलप करना है, लाइक स्टेप 0 से, तो कैसे करना चाहिए? अगर आप बिल्कुल शॉर्ट में ऑडियंस के लिए बता सकते हो। सबसे पहली चीज तो लर्निंग पर थोड़ा फोकस करो। ठीक है। ठीक है, आप नए नए वेब3 के अंदर आए हो, आपको कुछ कुछ चीजें तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भाई ब्लॉकचेन डेवलपर बन जाओ सीधे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, लेट मी टेल यू। बट ब्लॉकचेन क्या होती है इसके बारे में तो हम स्टडी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं। तो अब देखो, वेब3 स्पेस के अंदर आना है, लेकिन वेब3 का क्या एजेंडा है, व्हाट इज एक्चुअली वेब3, इतना तो पता हो। ब्लॉकचेन क्या है इतना तो पता हो। तो कुछ कुछ लर्निंग्स हैं, मुझे लगता है जो बेसिक्स हैं, एंड सी यू कैन फाइंड इट एनीवेयर ऑन द गूगल और यूट्यूब। यू जस्ट नीड टू गिव सम टाइम ऑन एडुकेटिंग योरसेल्फ एंड इट्स गोइंग टू पे वेरी हार्ड फॉर यू। ओके, सो पहली चीज है, मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा लर्निंग कर लो यार, और वो काम आने वाली है। ठीक है, चाहे वो किसी भी सोर्स से लर्निंग हो, चाहे वो आप नेटवर्किंग इवेंट्स में जाओ, कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल बनाना शुरू कर दो, ठीक है, जो ऑलरेडी क्रिप्टो के अंदर है। अरे आपको नहीं आता लेकिन उनको तो आता है ना, राइट, तो उनके साथ मिल करके तो आपको भी तो आ जाएगा ना। देखो, एनर्जी इज इन्फेक्शियस, एक इंसान से दूसरे में ट्रांसफर होती है। इफ आई एम सिटिंग विद अ पर्सन, विद अ क्रिप्टो गाय, विद अ वेब3 गाय, जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, अगर मैं उसके साथ टाइम स्पेंड ज्यादा करूंगा तो आज नहीं तो कल मेरे को भी वो नॉलेज आ जाएगी। इट हैपेंस लाइक दिस। सेम हम लोगों के साथ भी तो यही हुआ, आपके साथ भी तो यही हुआ होगा स्टार्टिंग में, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट। आई बिलीव कि उन लोगों को लर्निंग पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। दूसरा जो अभी मैंने पॉइंट बोला, बी द पार्ट ऑफ ऑल नेटवर्किंग इवेंट्स, ऑल द क्रिप्टो इवेंट जिसमें आप जा सकते हो। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी तरह भाई चलो बुक करे टिकट और अभी वियतनाम निकल गए, बुक करे टिकट अभी सिंगापुर चले गए, क्योंकि आप न्यू भी हो। अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली रीजन में आप फाइंड आउट करो क्रिप्टो कम्युनिटीज कहाँ पर। अब दिल्ली के अंदर कौन कौन से क्रिप्टो इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसको आप अवेयर ही नहीं हो। क्या आप उन ग्रुप्स में एडेड हो? क्या आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है? सो ट्राई टू बी इन टच ऑफ दीज वेब3 कम्युनिटीज, जिनके साथ आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिले, इंटरेक्ट करने का मौका मिले, वहीं पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी असल में। यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्रमोशन भी डाल सकता हूँ कि फिनफार्म का आपको डिस्कॉर्ड कम्युनिटी की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दैट्स अमेजिंग। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, राइट? एग्जैक्टली। तो अभी लाइक अगर हम अपनी भी कम्युनिटी की बात करें, हमारे पास इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई और भी कंट्रीज से वहाँ पे लोग हैं, एंड कभी कम्युनिटी कॉल पे बैठे हुए हैं, अलग अलग कंट्रीज से सबने ज्वाइन कर रखा है, एंड वहाँ पे जो बात चल रही है वो स्किल सेट के ऊपर ही बात चल रही है। एब्सोल्युटली। और जैसे कि अभी आर्य ने बताया, ऐसे कई कम्युनिटीज हैं और ऐसे कई सारे ट्विटर स्पेसेस हैं। एग्जैक्टली। मतलब आप जब ट्विटर पे कनेक्टेड होंगे क्रिप्टो पीपल्स के साथ, कम्युनिटीज के साथ, सो यू आर गोइंग टू फाइंड वेरियस ट्विटर स्पेसेस गोइंग आउट देयर। करो ना यार, उसको सुनो ना, वहीं से तो नॉलेज मिलेगी आपको। इतना सब कुछ कंटेंट है एक्चुअली में। और अगर आप, मैं कह रहा हूँ, ये काम आप डेली 1 घंटा भी कर लोगे ना, छोड़ो 1 घंटा, मैं कह रहा हूँ आधा घंटा भी कर लोगे ना, 1 महीने के बाद आप डिफरेंस देख लेना। आपके पास इतना नॉलेज तो होगा, इतना कंटेंट तो होगा कि यार $1000, $2,000, $3,000 तो आप कमा लोगे काम करके। इतना नॉलेज आ जाएगा।
लेकिन you have to give time to all this stuff like learning, like networking, going to these events, joining such communities, and most important part, Twitter spaces, YouTube पे podcast है, उसे देख लो थोड़ा बहुत. मतलब you can do a lot of stuff like this. And next part जो आता है सबसे important, make your personal brand. मतलब देखो सिंपल सी चीज तो क्या है ना, आप एक्चुअली में क्या दिखा रहे हो लोगों को, लोगों के माइंड में ना वही इमेज जाने वाली है आप लोगों की. True. ठीक है. अगर तो आप सोच करके देखो आर्यन, अगर मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस में मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो या ट्विटर पे कनेक्टेड हो, कहीं भी कनेक्टेड हो, यूट्यूब पे कनेक्टेड हो, अगर मैं वहां पर टिकटॉक की वीडियो डालूंगा या कुछ ऐसी डांस वीडियो डालूंगा, सो इट्स नॉट गोइंग टू गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑफ माई टू द पीपल, राइट, और इन द इंडस्ट्री. सो इट इज वेरी नीडेड कि आपका जो सोशल मीडिया है, जहां से आप लोगों से कनेक्ट करते हो, जो आपकी रियल इमेज है, वहां पे क्या ब्रांडिंग है आपकी, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर गिविंग टू द वर्ल्ड, वहां से लोग आपको रिलेट करते हैं, राइट. एंड थोड़ा सा भी मैं कह रहा हूँ कि इट्स नॉट अबाउट कि आपके फॉलोअर्स कितने ज्यादा हैं या आप वहां पर कितने सक्सेसफुल हो जाते हो. इट्स नेवर लाइक पोस्टिंग मत करो, बट कोई इररिलेवेंट पोस्टिंग मत करो. एग्जैक्टली. कम पोस्टिंग हो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको भाई मिलियन फॉलोअर्स चाहिए पैसा कमाने के लिए. इट्स नथिंग लाइक दैट. इवन आई एम नॉट फोकसिंग टू मच इनटू द फॉलोअर्स पार्ट और सोशल मीडिया पे. कई बार मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, इट इज ओके, लेकिन हैव अ सेंस ऑफ ब्रांडिंग ऑन द सोशल मीडिया चैनल्स. दिस इज माय रिकमेंडेशन. और ये चीजें जब लोग करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि they will be able to connect with the like-minded people, and people will see them, see something in them. और देखो छोटे मोटे से शुरू करो यार. सबसे बड़ी लर्निंग पता है क्या? अच्छा, यहाँ पर हम कितना भी बोलेंगे ना कि आप पॉडकास्ट देख लो या आप ये कॉमेडी ज्वाइन कर लो, पीपल विल नेवर डू. लेट मी टेल यू, वो रियलिटी वाला पार्ट आ जाता है. शायद Actually में 1000 में से कोई एक जना करेगा शायद. आर्यन सच बताऊं, आई विल पोस्ट राइट नाउ कि यार आई एम गिविंग अ पार्टी इन अ वेरी गुड क्लब इन दिल्ली. डैम श्योर यहाँ पर लोग रजिस्टर कर लेंगे. यस और नो? अगर मैं अरेंज कर रहा हूँ या मैं पार्टीज के लिए अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट कर रहा हूँ, मतलब वहां पे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है. वहां पर मतलब एक यूथ जो होता है ना, वो मजे की तरफ, एंटरटेनमेंट की तरफ, मस्ती की तरफ थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट होता है. मतलब हम लोग भी कुछ ऐसे ही थे स्टार्टिंग में. लेकिन अब ये चीज यूथ को ही डिसाइड करनी है कि उन्हें अपनी लाइफ कैसे जीनी है. लाइक सिर्फ वो पे चेक टू पे चेक जीनी है या फिर एक्चुअल में लाइफ में कुछ हटके करना है. देखो यार, मैं सिंपल सी बात बोलूं, मेरी तरह अगर आप इतना पॉडकास्ट ही देख सकते या ये सब चीजें नहीं कर सकते ना यार, पार्टीज तो कर सकते हो. जरूरी है पार्टी गर्लफ्रेंड के साथ ही करनी है हमेशा? जरूरी है पार्टी सिर्फ गर्ल्स के साथ ही होनी है? जरूरी है पार्टी सिर्फ अपने वही उन्हीं फ्रेंड्स के साथ, 4 फ्रेंड्स के साथ करनी है? क्रिप्टो पार्टीज अटेंड कर लो. कम से कम आप ड्रिंक शेयर करोगे तो आप उस बंदे के साथ ड्रिंक शेयर कर रहे हो जो कि ऑलरेडी एक लेवल पर है, और हो सकता है कि यार वो आपको भी बहुत अपलिफ्ट कर दे. करेक्ट. सो दैट इज माय पॉइंट. एंड क्रिप्टो मार्केट्स पूरे अपने अप्स एंड डाउन से ही रिलेटेड रहती है. एंड आई बिलीव कि जो मार्केट साइकिल्स हैं, अगर हम पास्ट 3 मार्केट साइकिल्स को देख रहे हैं तो हमेशा अपनी क्रिप्टो मार्केट साइकिल अभी तक रिपीट करती आई हैं कि लाइक एक आपका हाई पॉइंट आएगा, देन एक लो पॉइंट आएगा, देन एक एक्यूमुलेशन फेज आएगा. तो जो भी आपने एक चीज़ बोली, दैट इज दिस साइकिल इज डिफरेंट. तो आपके ऐसे क्या इनसाइट्स हैं कि दिस साइकिल इज डिफरेंट? This cycle is very different, and I think people will find this super interesting. ओके, Last cycles में क्या होता था? आई एम क्यूरियस. Last cycles में क्या होता था? This was the flow. BTC का प्राइस ऊपर जाएगा, राइट. स्टेबलाइज होगा. ETH का प्राइस ऊपर जाएगा, स्टेबलाइज होगा. Alts में Big blue cap, bets, blue cap alts will go up. BTC फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, ETH फिर थोड़ा ऊपर जाएगा. Medium mid cap coins will go up. And the last phase of the cycle, dog shit flies. Meme coin flies, dog shit flies. Even the NFTs also. Yeah, NFTs. By the way, NFTs is a very different ballgame altogether. And I wouldn't categorize it as a meme. Like NFT has some very big, strong narratives around it. True. But ठीक है. But that was it. कि end में dog shit will fly. Starting में gold standard flies. And when gold standard comes down, like BTC price drops, party is over, you go home. Maybe a month or 2 after that. This cycle, memes started flying first, which is supposed to happen at the end of the cycle. Now it's happening at the beginning of the cycle. The second thing that is happening, popular narrative like AI and all, even previous cycle, if you know what the popular narrative was, you would put money, you would still make money. In this cycle, none of the popular narratives
ran. AI didn't run like crazy. Even I guess सिर्फ एक fetch था. Even हाँ. the merger announcement उसका price एकदम से boom करा. Yeah, with the I forget WorldCoin. No, not WorldCoin. Fetch. 3 coins. Yeah, थे. 3 coins. 3 coins. थे. Yeah, I was actually looking forward to it. You had investments in Fetch, right? Yeah, yeah. You made pretty good money. Not pretty good. Again, it's all relative. Yeah, I made money, but was it pretty good? By crypto standards, no. By traditional stocks and equities, yeah, oh wow, crazy. But yeah, memes started flying first. That was like an anomaly. Second was when popular influencers got into the market. That was like a very good signal for the top. Right. This bald gentleman, very well spoken, Andrew Tate. He launched his coin, right? Why is he doing it now? This is supposed to be at market top. This is supposed to happen when BTC is reaching all-time highs. It happened sooner, right? Popular narrative investments did not fly, or they saw gains like super early on in the cycle, which is not supposed to happen. So what is happening is, and I have a theory on this, and I don't know if this theory is correct. इस मार्केट में काफी लोग पिछले 2-3 मार्केट का एक्सपीरियंस लेके बैठ गए हैं. Now they're front running the other person, like the veterans are front running other veterans, which didn't happen last cycle because chaos उस time भी ज़्यादा था and people didn't know exactly what they're doing. Now the people who know what they're doing are doing it, but then उनसे भी चतुर लोग आ रखे हैं which are front running their moves. So you now need to be like an ultra deep expert and like on the dark side of crypto Twitter to be able to predict these moves. And this is significantly different than last cycle because last cycle when the amount of dumb money was really high. In this cycle, it is very less dumb money. It is all mediocre to smart money. Like it is PvP. It's player versus player. It's not player versus normie or like the rest of the world. So that's why this cycle is very dangerous and very different. And even जैसे अब Wall Street का भी पैसा आ चुका है तो smart money is also here. I don't think Wall Street is smart money though. Okay. Like yeah, traditionally they are smart money, but they don't know jack shit about crypto. They have hired super smart people from the crypto industry to teach them about it. And don't get me wrong, those guys play like a god level different game. But I've seen enough hedge funds get wrecked. Right. Right? So that means not all hedge funds are super smart and they haven't hired the right people. So while they are super smart, they are hiring super smart people for the crypto and they're going to be most probably one step ahead of the vast majority. It does not necessarily make them the smart money. And there's a saying in crypto: if you want to make money, either you're super smart or you're super dumb. Like you either have to be super left curve or super right curve. अगर आप लोगों ने कभी curve के बारे में नहीं पढ़ा, go read it out. Like Reddit पे मिल जाएगा this theory. But yeah, don't be mid curve. And by definition, 90% of the people will fall somewhere in the middle, and they're not going to make money. So either you're on the like super dumb shit, you're like cat, why, and you make money, or you're super smart. People like cats. This cat has historical significance. I'm going to put in this much money. This meme is going to go viral, and then that will pump price. And normie people find this cat cute. Like either you can be that side, or you're like, I see cat, press buy. Only these two people are going to make money. Anyone in the center is going to get wrecked. Okay, तो अब आपकी क्या strategies रहती हैं अगर अब आपको crypto में invest करना है, like you are making money from cryptos now. Yeah. After that loss आपने बहुत कुछ recover करा and now you are making good money. So अब आपकी क्या strategies हैं? So I mean I'm a lot into different asset classes as well, like properties, real estate is one, US stocks and equities is one, Indian stocks and equities is one. Crypto is, but crypto by far for me is like 80% of my portfolio. Okay. Right. Now, I think I wasn't on the extreme left and I wasn't on the extreme right. I was closer to the right. जिससे दिक्कत ये हो जाती है कि I made some money. It wasn't life-changing money. And so basically I'm at a position where vast majority of my portfolio is in what you would call popular narrative like AI, gaming and RWs and stuff. But as we know, they didn't perform that great. And so I had like 5 or 10% of my portfolio in meme coins. Okay. And now because how meme coins performed, they're at 25% of my portfolio. But I'm largely out of most meme coins. And there's no very clear theory, right? I don't want to tell people go buy meme coins or do something. Like do your own research, take your own bets and gamble. But me personally, I am
only in very few selected blue chip meme coins, which I know कि यार they won't drop significantly in value. I've made enough money right now, and the idea at my stage of the game is to not get greedy. Because if I get greedy, I might lose all my losses, and my portfolio is big enough where those are significant. Will I be taking stupid bets right now? No. Will market present another opportunity to take stupid bets? 100%. And so I have some like ammunition, like liquidity in stables that I will deploy to stupid bets. But my long term, like cyclic bets, like AI and all, they were taken like quite a few months ago. They did really well. They're not falling like crazy. That's my current portfolio and strategy. Okay, so the last question, and I believe audience भी काफ़ी ज़्यादा interested है जानने में, like अगर कोई अभी start करना चाहता है, like आपने meme coins पे इतने ज़्यादा insight share करे, तो अगर अब किसी को सिर्फ meme coins bet लेनी है, like pure gambling में जाना है, nothing fundamentals, Yeah. तो what are the first steps that the person should adopt? Pure gambling. Mm-hmm. So before I say it, I need to put this disclaimer out there that if you want to make money in crypto, right? Right. The theory is the same as a gold rush. During a gold rush, you want to make the shovel, not go for the gold, right? जिन लोगों ने shovels बनाए थे gold rush में, they became rich, True. not the people who tried to buy, sell, and like mine gold. I think crypto is a super rewarding industry. It has the smartest people I've ever met in my life, dude. We have met with like people who have been nominated for like some economic World Forum पे economics में उनको मिला हुआ है to solve some economic problems. Ex Google employees, ex head of Google AI. Those are the kind of people that are working in the crypto industry. So I would say yes, you can look at it from gambling and investment purpose, but it is a super rewarding industry. Smartest people on planet Earth are here. Okay. AI is delving into blockchain as well. So if you're looking for a career, try to get into this. In my opinion, if you like smart people and hard problems, like the hardest problems are being solved in crypto. वो right side वाला curve जो आपने बताया. Yeah, that's investment in gambling. A lot of people who are super smart in crypto don't make any money actually. Okay. They don't understand investment, trading, and all. They understand technology, and so that's a very different side of things. Now, coming back to the main question, like degenerate question of gambling, I would say if you have money to lose, if you are saying कि यार ये मेरे पास $100 है, ये मेरी lottery ticket है, Right. either I will become very rich out of this, or I will like lose $100, whatever your capacity is, and तुम्हें basically lottery खेलनी है. I would say there are 2-3 strategies that you can use. Like अगर तुम्हें सही में 100 को 1 million बनाने वाला है, तो I would say Solana was a chain where the meme coins flew, right? It happened on Ethereum, but they didn't fly. Bitcoin doesn't have like, it has ordinals and dogs and stuff, but find another obscure chain which you will think will be like Solana, where trading meme coins will be easy. Get in on the most popular meme coin super early on and hold it and forget about it till you hear it on the news. And then when you hear other people talking about it, you sell it. चाहे वो कितना भी हो at that point. Okay. That is your lottery. Do I recommend it? No. Is that the only Of course, way not to a financial advice. Yeah, yeah, it's not financial, but that's the only way you can convert like $100 into $1 million. It's like you get on some like super obscure chain, which will become the next Solana. Put your money in the most popular meme coin that you find on there, and then you go home and sleep, and then you look at it when it's in the news, or you just say कि हाँ चलेगा तो चलेगा. तो ये सबके लिए gambling plan ready है. I don't recommend it. Like I do it myself a little bit, but yeah, I don't recommend it. Like most people, like I'm at a stage in life where I can retire. I have enough money, I can retire. So for me, gambling away a certain amount of my portfolio or wealth will have zero impact on my life. Okay. If it goes up, yeah, I will make some good money, and that might improve my life and give me a longer runway. But my current life is fine. But for most people who watch these videos, they don't have enough money to retire. They are not going to like be financially independent or free. So for them, either
they want to gamble because it will change their life. But the probability of you winning that lottery is kind of low. Most 90%, 99% of people will lose money. So I would say if you want the most sure shot way of making money in crypto, make the shovel. Like go work for a protocol, find a job, join a DAO, do whatever. But if you want to play the lottery, that's the game. But yeah, if you want a more sure shot way of making money, make a career in the industry. If you want like to play a gamble, you're happy with your life, job, everything, then yeah, and you don't mind losing money, then go for it. No. तो आपने अभी ना बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज करा. हमने ना पीयर टू पीयर स्कैम्स पे एक पॉडकास्ट पहले भी रिकॉर्ड करा था कॉफी विद क्रिप्टो में. एंड पीयर टू पीयर स्कैम्स आज की डेट में इतने ज़्यादा कॉमन है, चाहे हम बड़े बड़े एक्सचेंजेस की बात करें, बाइनेंस, कूकॉइन, बायबिट, इवन जितने भी मेजर ग्लोबल एक्सचेंजेस हैं जो आज की डेट में पीयर टू पीयर इंडिया में प्रोवाइड करें, उसमें से भी ऐसा होता है कि हर 10 में से कोई ना कोई एक शायद शिकार हो ही जाता है पीयर टू पीयर स्कैम्स का. तो अगर किसी का बैंक अकाउंट एज ए लीन मार्क हो जाता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. तो यूजुअली इस केसेस में हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं. अगर हम लोग जुडिशली देखें कि हम लोग थर्ड पार्टी को अप्रोच करके हम लोग रिजॉल्व करें. अदरवाइज फर्स्ट इज ऑलवेज टू कंप्लेंट विद द एक्सचेंज या जहाँ पे भी आपने ट्रांजेक्शन किया है कि ये हुआ है. अनलेस दे डोंट टेक एन एक्शन, देयर इज नो पॉइंट गोइंग टू पुलिस. अगर वो एक्शन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, टाइम लग रहा है, तो आप एफआईआर डेफिनेटली करना चाहिए आपको. एफआईआर आप कर सकते हो. एफआईआर अगेन आपका ही अकाउंट सीज हो गया है बिकॉज मे बी यू हैव रिसीव्ड फंड्स, की मतलब मैंने आपको पैसे भेजा लेकिन उससे आपने किसी और को पैसा भेजा और जिसको फाइनली पैसा मिला उसका कोई हमारा जो फ्रॉड वाला ट्रांजेक्शन है उसको पता भी नहीं था. बट सिंस उसके अकाउंट में पैसा आया, क्योंकि ट्रेसेबिलिटी हो सकती है, राइट, तो उसका अकाउंट मार्क कर दिया है. तो अब उसके पास सिंपल सा ऑप्शन ये है, उसके पास एक समन आएगा पुलिस से, या तो बैंक आपको रिपोर्ट करेगा कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, फिर आप पुलिस को अप्रोच करोगे, पुलिस आपको बताया कि आपका फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में जो है वो हमने सील कर दिया है फॉर सो एंड सो, क्योंकि ये फ्रॉड का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम टेक्निकली अकॉर्डिंग टू पीएमएलए कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है. तो अब आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन इज टू डिस्कस विथ योर आईओ कि आपकी कोई गलती नहीं है. यू गिव हिम व्हाटएवर यू कैन, जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स या जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगे आप उसको वो देंगे. तो उस हिसाब से वो आपको डिसाइड हो सकता है कि वेदर ही कैन लेट यू गो, अकाउंट छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता है, व्हेन यू प्रूव इट कि आपकी कोई गलती नहीं है. इफ नॉट, तो फिर आपको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपके जो भी जिस एरिया में जिसने ब्लॉक किया है या फिर आप जहाँ रहते हैं, डिपेंडिंग की क्या जुरिस्डिक्शन बनती है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अप्रोच करेंगे ये बोल करके कि मेरा अकाउंट, पूरा फैक्ट्स बताएंगे कि मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया, मुझे ये अकाउंट आया, मेरे को इस दिन मेरा अकाउंट सीज हो गया है और मैं अपना अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता. While the investigation is going on, usually courts will not say कि आप पूरा पैसा निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल 15 लाख है और आपका 1 लाख का ट्रांजेक्शन का अमाउंट रुका हुआ है, तो यूजुअली कोर्ट आपको सुनने के बाद, आईओ को सुनने के बाद, केस डायरी देखने के बाद में एटलीस्ट आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कोर्ट से कि कोर्ट बोलेगा कि ठीक है पूरा 15 लाख ब्लॉक मत करो, जितने का ट्रांजेक्शन है, जितने का एक्चुअल मनी आया है 1 लाख का, उतना अमाउंट ब्लॉक कर लीजिए. लेट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड. एक बार इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी, अपना वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे एफआईआर के बाद, उसके बाद फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने आप को कैसे गिल्टी से बचा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो वो 1 लाख रुपए है वो किसी एक पर्सन के थ्रू आपके पास में आया है जो एक्चुअल कल्प्रिट है. तो इधर ही विल हैव टू रीइंबर्स और सम अदर वे हैज टू बी फाउंड आउट कि आपके पास जो 1 लाख है वो टेंटेड मनी से बच जाए, तब आपको वो मनी रिलीज होगा. अदरवाइज अगर आप एक बार इस चीज में फंस गए हैं तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक टाइम. बट आपका मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू इज टू रेस्ट्रिक्ट जितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन इशू क्रिएट हुआ है उस चीज को लेकर के. तो भी आपने ऐसे केसेस हैंडल करे? हाँ, होता है, मतलब काफी कॉमन हो गया है आजकल की मतलब. और मैंने ऐसे भी ट्रांजैक्शन देखे हैं जहाँ पे ट्रांजैक्शन कहीं और हो रहा है, किसी और सिटी में हो रहा है, एफआईआर किसी और सिटी में रजिस्टर हो रखी है, और जो वो है एक्चुअल जो पल्पिटेटर हो सकता है वो किसी और सिटी में बैठा होगा. तो जिसकी गलती नहीं भी है उसको भी ये सब कुछ झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसको दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आईओ कॉल आएगा, वो बुलाएगा, आप 2-3 बार मिस करोगे, कोर्ट में जाएगा तो वहां से वारंट इशू होंगे, समन्स इशू होंगे, तो फिर आपको आना ही पड़ेगा. अदरवाइज अगर आप समन्स में नहीं जाएंगे, वारंट्स इशू होंगे, तो पुलिस आएगी, घर से उठा के लेके जाएगी आपको. तो इसलिए जाना चाहिए, क्योंकि आप कम्युनिकेट करोगे तभी इजी होगा, सॉल्यूशन निकलेगा. अदरवाइज इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा.
ठीक है, मैं थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की तरफ चल रहा हूँ एंड डेफिनेटली वो ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करने वाले हैं क्योंकि वो अलग अलग थोड़े बैकग्राउंड से रिलेटेड है। जैसे एक बार हम ट्रेडर इन्वेस्टर का देखेंगे, एक एंटरप्रेन्योर जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, अगर कोई ट्रेडर और इन्वेस्टर है जो आज की डेट में शायद ग्लोबल एक्सचेंजेस पे भी ट्रेड कर रहा है, तो व्हाट आर द लॉज जिससे आप उसे ध्यान में रखना चाहिए? बिकॉज जब से वो टैक्सेशन लगा है, TDS लगा है, तो बहुत सारे उसे अवॉइड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। यस सी, तो अगर आप ट्रेडर हैं या फिर आप प्राइमरली अपना इंडिविजुअली ट्रेड कर रहे हो आप, तो यूजुअली LRS स्कीम होती है एक, जिसके थ्रू आप बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट वो उस LRS का स्कीम के अंदर अभी क्रिप्टो करेंसी कहीं से नहीं आती है। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट मनी, डेफिनेशन ऑफ मनी इज डिफरेंट अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो अगर आपका क्रिप्टो करेंसी या टोकन या स्टेबल कॉइन वो उस डेफिनेशन में नहीं है, टेक्निकली इंडिया में सिर्फ एक ही डेफिनेशन है फॉर एनी क्रिप्टो टोकन स्टेबल कॉइन एनीथिंग विच इज वर्चुअल डिजिटल करेंसी, जो कि आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एंड उसमें सब कुछ आ गया, NFT, टोकन, सब कुछ, एवरीथिंग अंडर द सन, अंडर द ब्लॉकचेन, जिसमें एक टोकन है व्हिच हैज एनी वैल्यू कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ VDA, प्लस उस डेफिनेशन को और वाइड भी कर सकते हैं। देयर इज अ प्रोविजन फॉर अमेंडिंग द डेफिनेशन आल्सो। तो ग्रेजुअली मे बी स्टेबल कॉइन इन सबका डेफिनेशन डिस्टिंग्विश कर दें, बट अभी फिलहाल नहीं है। तो इफ आप मनी की डेफिनेशन में फॉलो नहीं करते हैं तो LRS स्कीम में यूजुअली नहीं आएंगे। फिर फेमा के अंडर भी सेम ही चीज आती है, फेमा के अंडर भी डेफिनेशन मनी की है। आप या तो आप मनी में फॉल कर सकते हैं, या आप कमोडिटी में फॉल कर सकते हैं, या फिर फॉरेन एक्सचेंज में फॉल कर सकते हैं, फॉरेन मनी में फॉल कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो एक्सप्लेनेशंस हैं उसके अंदर आप क्रिप्टो करेंसी को अभी एज ऑफ नाउ नहीं डाल सकते हो। मतलब दिस इज माय ओपिनियन कि आप अगर आप सिर्फ डेफिनेशन के बेसिस पे जाओगे तो आप फेमा के अंडर नहीं फॉल करते हो। बट कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं रेगुलेटरी एजेंसीज, कैसे ED या रेगुलेटरी PMLA, कोई भी उसको कैसे इंटरप्रेट करके आप पे यूज करता है या आप पे चार्जेस लगाता है, वो डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको परसीव कर रहे हैं। ओके, बट इट ऑल डिपेंड्स फाइनली कि जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट देख के क्या बोल सकता है। अभी रिसेंटली आई थिंक उड़ीसा हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने ये डिस्कस किया है कि ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है कि नहीं है। अगर आप टोकन लॉन्च कर रहे हो तो वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है कि नहीं है। तो जैसे जैसे जजमेंट आते जाएंगे विल गेट सम क्लैरिटी, बट अभी एट दिस मोमेंट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आप इंडिया से पैसा बाहर भेज रहे हो, बाहर से पैसा इंडिया भी आ रहा है, राइट। तो विच इज जनरली रेगुलेटेड अंडर फेमा का वायलेशन, या फिर आप फेमा में उसमें आ गए। उसके बाद आप ट्रांजेक्शन किसको कर रहे हो यूजुअली आपको नहीं पता होता है कि आप किसको पैसे भेज रहे हो, विच कैन ऑल्सो लीड टू इश्यूज अंडर PMLA। फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी को पैसे भेज रहा हूँ और वो बंदा उसी पैसे को किसी और तरीके से यूज कर रहा है, तो अगर उस पे केस चल रहा है तो देयर इज अ डाउट ऑन मी कि मैंने उसको पैसा क्यों दिया, बिकॉज ट्रांजेक्शन में आप रीजन तो नहीं लिख रहे, राइट? एग्जैक्टली। तो जैसे भी आप जब भी आप इंडिया से बाहर फिएट करेंसी भेजते हो थ्रू एनी बैंकिंग चैनल, तो आपको एक पर्पस कोड लगाना पड़ता है उसमें, कि किस पर्पस के लिए आप इस पैसे को बाहर भेज रहे हो या किस पर्पस के लिए पैसा अंदर आ रहा है, मतलब इंडिया में वापस आ रहा है। तो देयर इज नो पर्पस कोड फॉर दिस ट्रांजैक्शन। प्लस आप किसी भी एक्सचेंज पे ट्रांजैक्ट कर रहे हो तो इट डज नॉट अप्रूव कि आप चेक भी नहीं करता है कि आप उसी पर्पस के लिए भेज रहे हो या नहीं भेज रहे हो। यूजुअली आप लिख देते हो कि सर्विसेज या फिर एक्सचेंज या कुछ भी। तो आई कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली कि क्या क्या आप पे एप्लीकेबल हो सकता है एज ए ट्रेडर, बट फेमा, PMLA ये सब एप्लीकेबल हो सकते हैं डिपेंडिंग कि आप कितना ट्रेड कर रहे हो। इनकम टैक्स ऑफ कोर्स कि आप इनकम टैक्स किस पे, क्योंकि प्राइमरी रीजन कि आप इंडियन एक्सचेंजेस में ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप बाहर ट्रेड कर रहे हो विद VPN इज बिकॉज कि आपको टैक्स बचाना है, राइट? बट इट्स आवर थॉट कि हम टैक्स सेव कर रहे हैं, बट इट्स एक्चुअली टैक्स इवेजन, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट। कि हाँ आप टैक्स बचाना चाहते हो या टैक्स छुपाना चाहते हो, कि आपकी गवर्नमेंट को पता नहीं पड़े कि आपके पास में इतना पैसा है जिसपे आपको टैक्सेबल इनकम हुई है और आप वो बताओ नहीं, तो वो टेक्निकली पूरा गलत है। देन इट बिकम्स अ इशू अंडर इनकम टैक्स अथॉरिटी आल्सो, जो कि काफी लोगों को, काफी ट्रेडर्स को इनकम टैक्स से नोटिसेस आए हैं। बट अगर आप अच्छे से प्रूव कर सकते हो कि क्या किस लिए था, बट ये सब है जब इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं हुआ था तब भी नोटिस आ रहे थे। तो नाउ इट बिकम्स क्लियरर कि आपको अगर आप बाहर के एक्सचेंजेस में ट्रेड कर भी रहे हो तो एटलीस्ट इनकम में दिखाना जरूरी है, पे और टैक्सेस टू एटलीस्ट शो या बोनाफाइड कि आप अच्छे इंटेंट से कर रहे हो, आप चोरी करने के लिए नहीं कर रहे हो ये चीज।
सो जो आपने एक चीज़ बताई थी इवन पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में कि यू ऑलवेज सपोर्ट द नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो उसकी लिमिट्स होती हैं, जैसे अभी आपने डिग्रीज की बात करी थी, आपने लैंड रिकॉर्ड्स की बात करी, इवन बहुत सारे रिकॉर्ड्स। तो कोई ऐसा आइडिया जो आपके दिमाग में जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, लाइक वो आपका शुरुआत से ही जब से आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सुना था तो आपके दिमाग में तब से है कि मतलब ये चीज़ हमें टारगेट करनी है, ये चीज़ अब चेंज करके रखनी है? Okay, no, you know why central banks don't like Bitcoin or cryptocurrencies? Because it challenges their power or authority to create and issue currencies. Right. So the idea that fascinates me: what if central bank uses blockchain to create a central bank currency? आप एक 500 रुपये का जो नोट छपता है उसको उसके पेपर में इंक में आप 15 से 16 रुपये खर्च करते हो। राइट। फिर प्रिंटिंग कॉस्ट है, फिर स्टोरेज कॉस्ट, फिर वो स्टोर होके वेयर हाउस जाएगा, वहाँ से बैंक जाएगा, बैंक से एटीएम जाएगा, एटीएम से निकलेगा, उसमें कुछ फटेंगे, कुछ गुम होंगे, फिर उनको कुछ साल के बाद रिकवर करना पड़ेगा, डीमोनेटाइज, जिसका रोलिंग डीमोनेटाइजेशन। सो 500 रुपये में आप एक्चुअली 150 रुपये खर्च कर रहे हो। एंड पूरे प्रोसेस में हम वो सिक्योरिटी तो आपने मेंशन ही नहीं करी, लाइक वो सिक्योरिटी कितनी रखनी पड़ेगी? 150 रुपये टैक्स पेयर के ही हैं। एग्जैक्टली। वो जो डीवैल्यू हो रहा है, एक तो नेचुरल इन्फ्लेशन है और कुछ जो दी होल रोटेशन ऑफ पेपर करेंसी डीवैल्यूएशन है। If there was a CBDC on blockchain, there will be negligible cost. So if the government jump onto this bandwagon, they can reduce expenses. Okay. And Reserve Bank has come out with CBDC. In my opinion, limited opinion, I think they would see the merit in it, and this program will expand further. Okay. लेकिन अगर आप CBDCs की जैसे आपने बात करी, like there are pros and there are cons of CBDCs, right? एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट CBDCs, ऑलरेडी चाइना में इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो चुके हैं, बट व्हाट नाउ गवर्नमेंट इज डूइंग थ्रू CBDCs, वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रही है। लाइक अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हो तो दे आर गोना सीज योर बैंक अकाउंट्स। अगर आप जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन रिसीव करो तो आपके पास उसी टाइम टैक्स कट के रिसीव हो रहा है। नाउ दे आर गिविंग कार्बन क्रेडिट्स, लाइक अगर आप एक साल में बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो तो दे आर गोना डिडक्ट योर मनी कि आप इतना ट्रैवल नहीं कर सकते हो, पोल्यूशन करने में कहीं इफेक्ट करता है। एंड ये इतना ज़्यादा सर्वेलेंस हो चुका है कि लाइक कुछ कुछ जगहों पे ऑफ कोर्स न्यूज़ सेंसर करी जाती है चाइना में, बट आई हैव सम कॉन्टैक्ट्स देयर। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ भी बताई कि चाइना में लाइक अगर आपने ह्यूज लोन ले रखा है एंड यू डिफॉल्ट दैट लोन, राइट, तो व्हाट दे आर गोना डू, अगर आप अपने घर से बाहर निकलते, क्योंकि चाइना में आपके फेशियल स्कैनर्स हर जगह पे, मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज़ में, तो फेशियल स्कैनर से जैसे ही आपको करेंगे तो जितने भी बिल बोर्ड्स होते हैं वहाँ पे आपका फेस आना स्टार्ट हो जाता है रिगार्डिंग यू हैव डिफॉल्टेड द लोन, एंड आपको वो क्रेडिट लेने भी नहीं देता। लाइक इफ आई हैव डिफॉल्टेड द लोन एंड यू आर माई फ्रेंड, मैं आपसे कहता हूँ आप मुझे पैसे ट्रांसफर कर दो, वो पैसे आप मुझे ट्रांसफर भी नहीं कर सकते क्योंकि मेरी हर चीज़ सीज हो चुकी है। तो आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया में भी ये चीज़ इंप्लीमेंट होती है विदाउट दिस प्रॉपर रेगुलेशन तो इट कैन पोज प्रॉब्लम फॉर अस? Okay, there is a term in English for this, Faustian bargain. Okay. Efficiency और privacy. जितना आप efficiency बढ़ाओगे उतना privacy challenge होगी. Right. कि आप इतना efficient transaction बनाना चाहते हो कि blockchain पे हो जाए, and everything is like happens in hundredth of a second. Right. Then it also make it easier to track who's spending. Yes, that challenge is there. इसके लिए regulatory protocols होंगे, जिसके पास ये information है उसको एयर गैप रखना चाहिए, उसको सिक्योर रखना चाहिए। द पोटेंशियल फॉर गवर्नमेंट टू यूज इट, एज यू मेंशन चाइना इज देयर, द गवर्नमेंट्स विल यूज इट। दिस इज समथिंग which is a question to be addressed by regulations, not by the tech. Okay. और अगर मैं आपकी जर्नी में थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ, जब आपने बोला जैसे IIT बॉम्बे, मतलब आपने IITs और NIT को जब टारगेट किया था, उसके बाद जब आपने एल्गोरिथम की टीम को टारगेट किया था तो आपने कोल्ड ईमेल्स डाली थी। एग्जैक्टली। तो आपने सबसे पहले वो सोर्सेज कैसे निकाले? क्योंकि अगर किसी को भी स्टार्ट करना है, राइट, वो सोर्सेज निकालना सबसे मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले IIT बॉम्बे का बताता हूँ मैं। तो IIT बॉम्बे में या फिर मैंने कैसे एंट्री ली, तो उसके लिए आपको मैंने जैसे बोला कि आपको प्रोफेसर्स की लिस्ट निकालनी पड़ेगी, और वो लिस्ट कैसे निकलेगी, आपको जाना पड़ेगा IEEE की वेबसाइट्स पे, रिसर्च पेपर की वेबसाइट्स पे, जहाँ पे रिसर्च पब्लिश होती हैं, या आप ढूंढ लो सीधे कि ब्लॉकचेन रिसर्च पेपर्स कौन कौन से हैं। फिर उस रिसर्च पेपर में ऑथर के नाम होता है, राइट, नेम्स होते हैं, ईमेल्स होते हैं इसमें। तो वहां से ईमेल्स पिक किए मैंने। ओके। तो उस रिसर्च पेपर से इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा कुछ पाना है तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, राइट, खोना नहीं है ऑब्वियसली। बिना कोई भी हम पा सकते हैं, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। Okay. तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स निकाले मैंने, और वो थोड़ा बहुत पढ़ा भी, ताकि मैं सर को अगर मेल कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर प्रोफेसर को, तो उनको बताना होगा ना कि मैंने आपका कॉन्टैक्ट यहाँ से निकाला है, आपका ये पेपर पढ़ा है, ये काफी मुझे अच्छा लगा, काफी इसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं,
और मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आई वांट टू वर्क विद यू। तो ऐसे मैंने लिस्ट निकाली बहुत सारे रिसर्च पेपर में से और ईमेल्स निकाले प्रोफेसर्स की। फिर उनको कोल्ड ईमेल शुरू किया सबको अलग अलग। और ये भी नहीं है कि आपने एक ईमेल बनाया तो सबको भेजते जा रहे हो। आपको एक अच्छा कोल्ड ईमेल का मतलब ये नहीं कि आपने बस सीसी कर दिया सबको भेज दिया, सबको अच्छा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, ताकि वो देखें तो उनको जेन्युइन लगे कि भाई ये बंदा काम करना चाहता है, ही इज इंटरेस्टेड, ये नहीं कि बस ऐसे इंटर्नशिप ढूंढ रहा है। तो मैंने पर्टिकुलर जैसे प्रोफेसर विनय रिबेरो ब्लॉकचेन पीओएस में काम कर रहे थे और बहुत सारी रिसर्च पेपर उन्होंने ऑलरेडी लिखी हुई थी, तो मैंने उनके पेपर्स पढ़े, देखे कुछ चीजें, फिर उसमें से थॉट्स निकाली कि प्रॉफ मुझे ये थॉट अच्छा लग रहा है, ये इंटरेस्टिंग है, इसमें हम और कुछ काम कर सकते हैं या मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने ऐसे मेल किए 20-25 जो भी थे। तो मतलब बेसिकली आपने, मैं कोल्ड ईमेल्स नहीं कहूंगा, आपने थोड़ी स्मार्ट मेलिंग करी है यहाँ पे। हाँ वही कह सकते हैं, थोड़ा एक स्मार्ट मूव आपको करना पड़ेगा, एक मतलब एक डिजाइन करना पड़ेगा पूरा मेल और अच्छे से उसको क्रिएट करना पड़ेगा ताकि जो पढ़ रहा है जिसको आप भेज रहे हो उसको लगे कि इसने मेहनत की है ऑलरेडी, थोड़ा एक इम्पैक्ट जाता है, राइट, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सक्सेस हमेशा मिले, बट एटलीस्ट आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको इंटरव्यू का मौका मिल जाए। नहीं कि इंटरव्यू के बाद ना हो या तो वो तो बात की बात है, बट फर्स्ट ट्राई तो अच्छा होना चाहिए ना, ताकि आप एक अपॉर्चुनिटी तो मिल जाए, स्टेप इन कर जाओ, मैं हायर हुआ। ठीक है, लेकिन अगर आज की डेट में मैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की बात करूं, जैसे आपने कहा आपने वो 4 महीने अपने आप पे डेडिकेट करे थे रिगार्डिंग ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, आज की डेट में भी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में कुछ अच्छे रिसोर्सेज नहीं है। लाइक एज ए न्यूबी अगर मुझे सीखना है, या फिर जो ऑडियंस यहाँ पर ये पॉडकास्ट देख रही है, इफ दे वांट टू स्टार्ट पॉडकास्ट कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट अगर उन्हें स्टार्ट करनी है तो लाइक उनके लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, लाइक व्हाट आर द रिसोर्सेज एंड कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आपने शायद ऑप्ट करे हो या आपने कहाँ से सीखा था? मैं सबसे पहले चीज तो इसको सेग्रीगेट करना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन में जाने के लिए 2 चीजें, एक आप कोडर हैं, ठीक है, एक आप नॉन कोडर हैं। ओके, अगर आप नॉन कोडर हैं तो एक सेपरेट डिस्कशन है, मैं स्पेसिफिक फोकस करूंगा अगर आप कोडर हैं। ठीक है, कोडिंग सेक्शन में आप एटलीस्ट जो बेसिक्स हैं प्रोग्रामिंग के, अगर आप CS के या जो भी देख रहे हैं लोग, फॉर लूप, इफ एल्स, ये काम कैसे करते हैं, बेसिक्स। ठीक है, प्रोग्रामिंग इज नॉट अबाउट आप लीड कोड में क्या रैंक है, आपकी हैकर रैंक पे क्या रैंक है, फर्क नहीं पड़ता। आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो आसानी से, अगर आपके अंदर वो काबिलियत है तो आप किसी भी चीज को क्रैक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि स्किल सेट कौन से रिक्वायर्ड है अगर आपको हंट पे जाना है। तो लाइक इन Web2 वी हैव डिफरेंट सेगमेंट्स की, फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, राइट, एंड डेवऑप्स का भी काम होता है जो सर्वर चलाता है, तो आपको वो चूज करना है। तो अज्यूम कर लेते हैं आपको फ्रंट एंड सीखना था, फ्रंट एंड में जाना है, तो आपकी UI UX अच्छी होनी चाहिए, आपको React.js पूरा MERN स्टैक है जो वो आपको आना चाहिए, React.js, HTML CSS के बेसिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, अगर आप बैकएंड पे हैं तो बैकएंड में सॉलिडिटी है, रस्ट है। सॉलिडिटी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो EVM कंपेटिबल है इथेरियम के साथ, पॉलिगन के साथ। अब बात करते हैं आप कोर्सेज की। पहले भी कोर्सेज नहीं थे, आज भी कोर्सेज नहीं है। तो ओनली थिंग जिससे आप फास्टर सीख सकते हो, आई वुड सजेस्ट कोई भी अपने आसपास की ना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उठा लो। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो सिस्टम ऑफ दिल्ली, ठीक है, या एयरपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, इसके ऊपर एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाओ, कंप्लीट फ्रंट एंड जहाँ पे कोई आके बुक करे टिकट, कंप्लीट फ्रंट एंड जो चेक इन चेकआउट करे, और उसी का एक बैक एंड लॉजिक कि कितने कस्टमर्स आए थे, कितने कस्टमर्स चले गए। आप जब ये कर लोगे ना तो आपको ना पूरा एंड टू एंड पता चल जाएगा कि अच्छा होता क्या है। फिर स्केल तो आप कर ही लोगे टाइम टू टाइम, वो कोई नहीं कर पाता फर्स्ट टाइम पे। तो अल्टीमेट थिंग इज आप एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाओ। तो अब आपको सवाल ये आता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाए कहाँ से? हैकाथॉन। हैकाथॉन, आप आसपास जहाँ पे भी हैकाथॉन हो रहा है, हैकाथॉन में जाइए, सारी कंपनीज के स्टॉल्स होते हैं, आप उनसे पूछिए कि आप API 3 हैं, आप क्या करते हैं, तो वो कहेंगे हम तो ओरेकल बनाते हैं। वो कहेंगे ओरेकल क्या होता है, तो आप वो बताएंगे कि ओरेकल ऐसा होता है कि Web3 में Web2 के डेटा को प्रोवाइड करना इज ओरेकल, राइट। तो आप समझ जाओगे अच्छा मुझे वेदर का डेटा अगर चाहिए सॉलिडिटी में तो API 3 देगा। हैकाथॉन, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, देन हैकाथॉन इज द ओनली रोड मैप। कोई यूट्यूब नहीं, कुछ नहीं। कुछ चैनल्स हैं, एक है ईट द ब्लॉग्स, एक है डैब यूनिवर्सिटी। ये दोनों अच्छा कंटेंट देते हैं, बट अल्टीमेटली यू हैव टू बिल्ड योर ओन प्रोजेक्ट। अब एक कोडर है या एक नॉन कोडर है, लाइक दे आर बिल्कुल कंप्लीटली न्यू टू Web3 इंडस्ट्री, तो लाइक अगर आप उनका बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो, जो भी हमने पॉडकास्ट में चीजें डिस्कस करी है कि अब कोडर के लिए ये स्टेप्स होने चाहिए, नॉन कोडर के लिए भी ये स्टेप्स होने चाहिए, कि आप कैसे इस इंडस्ट्री में
एंटर कर सकते हो एंड हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन करियर, चाहे आप स्टार्टअप कर रहे हो चाहे एक जॉब सीकिंग कर रहे हो, तो कैसे आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हो? मैं एज्यूम यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि आपको ना इंडस्ट्री की नॉलेज है ठीक है। एटलीस्ट 1 साल की। हाँ जी। कॉलेज में हो तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। ओके। एज्यूम किया कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, नाउ यू आर ट्राइंग टू शिफ्ट Right. इनटू द ब्लॉकचेन। तो पहला कैटेगरी है कोडर्स। अगर आप कोडर हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपको ब्लॉकचेन में शिफ्ट करना है, रिएक्ट जेएस सीखिए। मैं कहूँगा पूरा 1 स्टेक सीखिए। ठीक है। नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, HTML, CSS, ये हो गया वेब 2 का पार्ट। ओके। अब वेब 3 के पार्ट में केवल 2 चीजें, एक है web3.js करके लाइब्रेरी है ठीक जो है। कि फ्रंट एंड की है, एक है सॉलिडिटी। सॉलिडिटी सीखने के लिए रीमिक्स पे जाइए और अपना कोड बिल्ड कीजिए। रीमिक्स ऐप है? रीमिक्स एक कंपाइलर IDE Okay. है जो एग्जीक्यूट करता है आपके ठीक कोड है। को। तो रिएक्ट, HTML, CSS, web3.js, सॉलिडिटी, ये हो गई स्किल सेट के लिए। दूसरा सोशल प्रेजेंस, ट्विटर, लिंक्डइन, और तीसरा आउटस्टैंडिंग रेज्यूमे। सिंपल कॉन्सेप्ट होगी फॉर कोडर्स। नॉन कोडर्स के लिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले आएगी सोशल मीडिया। ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी अच्छी प्रोफाइल पिक्चर, अच्छा बायो, आपके अच्छे आर्टिकल्स। फिर अब आपको चूज करना है कि किस सेगमेंट में जाना है। आपको कम्युनिटी मैनेजमेंट में जाना है तो आपको उस साइड में आप लिखिए कि कैसे आप कम्युनिटी मैनेज कर रहे हो, 400 लोग की, 500 लोग की एक्सपीरियंस शेयर करो। अगर आपको जाना है वहाँ पे UI UX इंजीनियर के तौर पे, तो आप अपने फिग्मा के डिफरेंट web3 के एक्सपीरियंस शेयर करो कि वेब की व्हाट्सएप अगर web3 पे होता तो कैसा होता, वो सारी चीज़ें बिल्ड कीजिए। इसके अलावा आपको सेल्स में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, तो वो वहाँ पे आप अपना ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस शेयर करो कि देखो मैं ट्रेड इतना करता हूँ, API 3 के बारे में, रॉनिन के बारे में इतना जानता हूँ, और प्रीवियस मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, जोमेटो के ठीक लिए, है। स्विगी के लिए। तो दिस इज व्हाट सोशल प्रेजेंस, फाइनल thing for non-coders, nothing else. Okay.